First of all, before I start the Q&A, I want to apologize to all my viewers who are not so fluent in Hindi. See, one of the reasons why I'm not making videos in English right now is that firstly, there are very good videos in English already. If you want to learn Correct. how to make a straddle or how to adjust a straddle, you can go to Tasty Trade videos. I really doubt I'll be Yes, able yes, to. Manoj, you can keep it on mute right now. I'll ask you to unmute again. So I really doubt I can make a video as good as Tasty Trade, which is there in English, which has millions of views. That is one reason. I don't want to repeat what they have already said, and in such a beautiful manner. Second reason is when I go and see videos in Hindi, they are close to pathetic. I mean, more videos are how to make from 5,000 to 5 lakhs to even 5 crore. I mean, yesterday I came across a video where the guy is saying from 25,000 rupees, he's managing AUM of 5 crore in a span of 2 years, and last year's profit was 1.8 crore. I mean, most likely these are lies, guys. I mean, the trading game, the psychology itself is so difficult to master when you scale up. It's not so easy to scale up from 25,000 to 5 crore. But most videos in Hindi are like that, promising huge return, zero loss, 100% accuracy rate, and so on. I hope none of you who are listening to this particular video believe in that. If you believe in that also, please understand that you have to start with very small capital at risk, because most likely these are lies. But I am not stopping you from testing this. Okay, somebody is Biswa is raising hand. I'm unmuting him right now. Hmm, I really don't know how to unmute you, Viswa. Can you please just let me finish in a minute, then we'll take questions. You can also send me questions in Twitter DM. Okay, or you can make a comment against any of my videos. See, advantage to me is if you make a comment is that in algorithm my video will go up in the ranking. I One thing you can rest assured from me is I'll be totally transparent from you. Okay, so if something is advantageous to me, I'll mention it upfront. If I'm doing an ad or a promotion, I'll mention it upfront. Okay, so transparency and honesty you can expect from me. So I want you to comment on any of my videos. I'll get the pop-up, I'll address that answer. So that is the reason I'm not making videos in English. Having said that, I promise to each and every of you, if there are difficult questions which you are asking which merits a making of a video, or any video which becomes very popular in Hindi, I'll make a video in English as well. I'm trying to add subtitles. So far I have not got time or expertise or help to do that, so my apologies. Okay, now we'll start it again now. And you can preferably in my that video of loss making, that video, bade loss se kaise bache. If you make a comment there, or you can make a comment on any of my videos, and I'll try to answer as many. Or you can put a Twitter DM also. You can put the comment in Twitter DM. I'll try to answer. Now you have to write your questions now, either in Twitter DM or in YouTube. Any of my videos, below the video you write in comment section. So we are starting now. Okay, just in 1 minute. Okay, so we are live now. I'll start taking questions. So Samad Pandey has asked, a lot of setups everywhere, different style of trading, many books, many videos. How to decide which setup to start with? This is a very good question, guys. I'll try to use both Hindi and English for the purpose of this particular Q&A. See, setup has to match with your personality. आपके आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है और आपका जो फियर साइकोलॉजी है, ग्रीड साइकोलॉजी है, सेटअप उससे मैच करना चाहिए. कोई भी सेटअप जो हम यूज करते हैं
वो सेटअप दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, या तो वो मीन रिवर्टिंग होता है या ट्रेंड फॉलोइंग होता है। ट्रेडिंग में अभी तक कोई फ्री लंच नहीं है, तो अगर कोई सेटअप ऐसा है जो मीन रिवर्टिंग होगा, उसका नेचर क्या होता है कि वो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स ढेर सारे देगा और एक बड़ा लॉस दे सकता है। जैसे कि अगर आप मैंने जो वेबिनार शेयर किया हुआ है स्ट्रैंगल 920 पे, वो वेबिनार आप देख सकते हैं। वो सेटअप कैसा है, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट रोज होंगे, और किसी दिन दोनों साइड का अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपको बड़ा लॉस होगा। बड़ा लॉस साल में 3 या 4 बार ही होगा, लेकिन जब भी होगा तो इट विल बी ह्यूज पार्ट ऑफ योर कैपिटल, एक कैपिटल का बड़ा पार्ट लेके जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों को ये सूट नहीं करता है, अगर एक कैपिटल का बड़ा पार्ट चला जाए तो वो फिर वो सेटअप को वो फॉलो नहीं कर पाते नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप होता है, जिसमें बाय डेफिनेशन आपको छोटे छोटे ढेर सारे लॉसेस होते हैं, और अचानक से एक ट्रेंड आता है जिसको आप पूरा राइड कर पाते हो, तो उसमें आपको मोटा प्रॉफिट होता है, जितना पुराना लॉस हुआ वो भी कवर हो जाता है, और एक बड़ा प्रॉफिट आपके सामने आ जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये क्या होती है कि जो छोटे छोटे लॉस होते हैं, बहुत कम लोगों को ये पसंद आता है, और ये डिसिप्लिन रखना मुश्किल होता है कि रोज आपको लॉस हो रहा है, रोज लॉस हो रहा है। जैसे मेरा मेरा जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, अगर आप मुझे 3 महीने से देख रहे होगे, उस ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में मतलब पिछले 3 महीना बहुत डिफिकल्ट था और काफी लॉसेस हुए हैं। मैं चूंकि बड़ा कैपिटल हैंडल करता हूं, तो मैंने सेटअप्स मिक्स करके रखे हैं, उसमें ट्रेंड फॉलोइंग भी है, मीन रिवर्टिंग भी है, उसमें इक्विटी भी है, करेंसी भी है। तो वो एक मेच्योर सेटअप होता है जिसमें एक पोर्टफोलियो ऑफ सेटअप्स होते हैं। आपको, अगर आप बिगिनर हो, अभी आप सीख रहे हो, तो कोई भी एक सेटअप पकड़ना है। और अगर आप 6 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हो, खुद से किसी का वेबिनार अटेंड करके या किसी से सीख के, या टोटली खुद से भी कर रहे हो, तो भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको छोटे लॉस बर्दाश्त होते हैं, या एक बड़ा लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो और छोटे छोटे आपको प्रॉफिट चाहिए। वो पहले चूज कर लो। सपोज करो, फर्ज करो कि आपको छोटे छोटे प्रॉफिट रोज चाहिए, जो कि ज्यादा लोगों की पसंद होती है, और एक बड़ा लॉस आप हैंडल कर सकते हो वंस इन ऑयल। आप इतना मेच्योर हो कि आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि आपके सेटअप में। तो ऐसे में अगर आपका कैपिटल 3 लाख या उससे थोड़ा ऊपर है, तो आप ऑप्शन सेलिंग पे जा सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे स्ट्रैंगल है, स्ट्रैडल है, वो आप देख सकते हो, आयरन कॉन्डोर है, वो आप देख सकते हो। ये सारा कुछ टेस्टी ट्रेड पे इंग्लिश में फ्री में दिया हुआ है, उसको समझो। फॉलोअप क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछो। हिंदी में भी कुछ चैनल है जहां पे आपको ठीक ठाक कवर किया गया है, 3-4 चैनल देखोगे और उसको आप थोड़ा सा फॉरवर्ड टेस्टिंग में सिमुलेट करोगे, या तो अपने दिमाग में या छोटे कैपिटल से, तो आपको समझ में आ जाएगा। छोटे कैपिटल का मतलब क्या, बैंक निफ्टी का एक लॉट 25 का होता है, तो एक लॉट से आप करो, आप स्ट्रैडल लो। जैसे मैंने अपने वीडियोस में बताया कि अगर आप एक स्ट्रैडल लेते हो, मोस्ट ऑफ द डेज आपको 1:1 का प्रॉफिट दे जाएगा। कभी कदार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया था ना पिछले वीडियो में, कि उसमें एक फिक्स स्टॉप लॉस, कंबाइंड स्टॉप लॉस मान के चलो, या दोनों तरफ 50-50% का स्टॉप लॉस लेके चलो। पूरा जो मेरा वेबिनार है वो एक साथ आप मत अभी करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप 12 लॉट यूज कर रहे होते हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल एक साथ इन्वॉल्व हो जाता है, वो अभी मत करो। तो 25% का स्टॉप लॉस वो भी प्रॉफिटेबल है, 50% का दोनों साइड इंडिविजुअल लेग में स्टॉप लॉस वो भी प्रॉफिटेबल है। तो अगर आपको वो, अगर ट्रेंड फॉलोइंग आपको फॉलो करना है, मैं अक्सर शेयर करता रहता हूं, उसमें क्या है, आपको ऐसे जगह पे स्टॉप का ब्रेकआउट देखना है, स्टॉक्स का या इंडेक्स का, जहां से ब्रेकआउट आ रहा है, या पुल बैक के बाद एक ब्रेकआउट आ रहा है, कप एंड हैंडल बना रहा है, और वहां से उसका स्टॉप लॉस ऐसे रखना है कि आपको 1:2, 1:3, 1:4 का प्रॉफिट देखे जाए। अगर आपके पास ऑप्शन सेलिंग भी आप कर रहे हो, तो उसमें भी आप डायरेक्शनल कर सकते हो। जैसा कि मैं शेयर करता रहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो आप पुट सेल करो इंट्राडे में। अगर आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो आप कॉल सेल करो, और उसका स्टॉप लॉस ऑप्शंस के ग्राफ को देख के स्टॉप लॉस लगाना है, इंडेक्स के ग्राफ को देख के नहीं। ऑप्शंस के ग्राफ में ऐसे जगह स्टॉप लॉस लगाओ कि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपने जो रिस्क लिया उसको आर बोलते हैं, और अगर वो नीचे आपके डायरेक्शन में जाता जाता है, आपको प्रॉफिट देके, तो 1:2, 1:3 मिनिमम देख के जाए, ऐसा सेटअप आप यूज कर सकते हो। तो ये समर्थ का आंसर किया मैंने कि अगेन डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है। आपको, आप ट्रेडिंग में मार्केट से ज्यादा ये समझना जरूरी है कि आप क्या हो, तू क्या है, तू तू कौन है, मतलब वो चीज समझना, वो आपको खुद करके ही समझ में आएगा। किसी का बोरोड सेटअप, किसी का दूसरे का वेबिनार, या वो कॉपी पेस्ट किया हुआ किसी की ट्रेड, उससे क्या होगा, जब आपके पर्सनालिटी के अगेंस्ट ट्रेड जाएगा, तो आप रैंडम हरकतें करोगे। 2 लोगों ने हाथ उठाया है। यार मैं
आप अपनी चैट मुझे भेज सकते हैं क्या? मुझे हाथ उठाने के बाद आपको कैसे अनम्यूट करना है? ओके, मैं अभी हाथ उठाने वाले लोगों को अभी एड्रेस करूंगा। अभी यूट्यूब पे जिन्होंने क्वेश्चन डाला हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन ये, प्लीज शेयर योर जर्नी हाउ टू बिकम इंजीनियर टू ट्रेडर टू अ बैंक। आई ऑल्सो वांट टू बिकम ट्रेडर इन इंस्टीट्यूशन फर्म। आई एम ऑल्सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट 4th ईयर। प्लीज टेक माई क्वेरी। सी शोहेब ने ये क्वेश्चन पूछा है। शोहेब देखिए, ऐसा है कि मैं अपना तो बता देता हूं। मैंने तो काफी स्ट्रगल किया, उसको 3-4 लाइन में आपको बोर नहीं करूंगा। मैंने इंजीनियरिंग करी थी आईआईटी से, उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी, आईएएस की प्रिपरेशन करी थी, और उसमें मैं फेल हो गया। उसके बाद मतलब आप, मुझे ट्रेडिंग से वैसे तो बचपन से इंटरेस्ट था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करता था। और उसके बाद मुझे सेम क्वेश्चन से मैं भी गुजर रहा था कि कैसे एक ट्रेडिंग फर्म में जाना है, कैसे क्या करना है। और जो उस टाइम मुझे लोगों ने बताया, तो मैंने फिर एमबीए किया, और एमबीए के बाद मेरा सिलेक्शन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ट्रेजरी में हुआ, ऑन द सेल्स साइड। सेल साइड में जॉब्स ज्यादा होती हैं, ट्रेडिंग साइड में जॉब कम होती हैं। तो मुझे सेल साइड में लिया गया, और इम्प्लिसिट प्रॉमिस ये था कि बाद में ट्रेडिंग में देख लेंगे। और मेरे पास बहुत ज्यादा चॉइसेस थी भी नहीं, क्योंकि करियर में गैप आ चुका था। तो आपको अगर गैप आ जाता है तो लोग लेना नहीं चाहते, अगर आप लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहे हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने वहां पे तकरीबन 8 साल मैंने सेल साइड में काम किया। लोगों के फोन उठाए, लोगों की मिन्नतें करी, लोगों को, ट्रेजरी सेल्स था तो मैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, वो बेचता था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो, लेकिन उसमें भी कस्टमर की गाली खानी पड़ती है। एवरी डे आई हेटेड माई जॉब। और उसके बाद 8 साल में मैंने 5 साल जो है वो कंट्री में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। आई वॉज टॉप रेटेड इन माई फर्म। सेल साइड में इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, कई दिन में रोया। लेकिन 8 साल के बाद मुझे ट्रांसफर मिला ट्रेडिंग डेस्क पे। तो 5 साल से अभी मैं इंस्टीट्यूशन के लिए ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि ज्यादातर जो, अगर इंडिया में इंस्टीट्यूशन में देखो तो पीएसयू से हायरिंग ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है? जैसे कि अगर आप बॉन्ड साइड में हो, तो आप किसी पीएसयू फर्म में काम कर रहे हो, आप जैसे एलआईसी में काम कर रहे हो या एसबीआई लाइफ में काम कर रहे हो, एज अ ट्रेडर या एज एन इन्वेस्टर या एज ए बॉन्ड ट्रेडर। तो वहां से प्राइवेट वाले आपको ज्यादा उठाते हैं, क्योंकि उनको रेडीमेड एक्सपीरियंस मिलता है और सैलरी वो सीधा 3 गुना ऑफर करते हैं। तो सबसे बढ़िया गो टू जो होता है एम्प्लॉयर के लिए, वो होता है आपको पीएसयू से उठाना। ऑब्वियसली आप पीएसयू में तो जाओगे नहीं, आप तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। दूसरा होता है कि अगर आपने एमबीए किया हुआ है, तो ये ज्यादा इजी होता है कि आप इंस्टीट्यूशंस आपको अप्रोच करें। उसमें भी प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम 10 में से एक इंस्टीट्यूशन में आपका सिलेक्शन होगा। उसमें भी जैसे मुझे सेल्स ऑफर किया था, आप बहुत ही, मतलब आसमान में पत्थर फेंकने जैसा है कि अगर चांद पे लगा तो ठीक है, नहीं तो सर पे गिरेगा। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टूडेंट हो तो नॉर्मल सी जॉब ज्वाइन करो। अगर आप देखो पहले ट्रेडिंग के लिए बने हो कि नहीं, और उसको देखने का सबसे बढ़िया तरीका है, शाम को क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग होती है, शाम को गोल्ड की ट्रेडिंग होती है एमसीएक्स में, वो आप जीरोधा के थ्रू कर सकते हो। ऑफिस से जब भी छूटते हो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी छूटते हो, मार्केट रात के 12 बजे तक खुला रहता है। वहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग करो, स्टॉप लॉस लगाना सीखो, लॉसेस लेना सीखो, अपने एक्सपेरिमेंट करो, टेक्निकल लगाना सीखो। अगर साल 2 साल प्रॉफिट रहा अभी, या बहुत यंग हो, उसके बाद ट्रेडिंग करियर बनाने की सोचो, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में टॉलरेंस बहुत कम होता है। अगर आप लॉस बना रहे हो तो आपको 6 महीने, साल भर से ज्यादा वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। या तो आपको दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर देंगे, दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे, और नहीं तो निकाल भी सकते हैं। इंजीनियरिंग के बाद फ्यूचर फर्स्ट जैसी फर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा हायर करती हैं, एक सिंपल से एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद आपके कॉलेज में भी आएंगी, या तो आप डायरेक्टली भी किसी रेफरल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ पिछले 10 साल में, जो जिन्होंने फ्यूचर फर्स्ट में अप्लाई किया, उनका टेस्ट दिया और ज्वाइन किया। अगेन फ्यूचर फर्स्ट में भी अगर 6 महीने से 9 महीने आप नहीं परफॉर्म करोगे तो वो लोग निकाल देते हैं आपको। तो बहुत ही रिस्की एरिया है। मैं बोलता हूँ ऐसा काम मत करो जो शुरू में ही आपको बहुत रिस्क में और डिसएडवांटेज में डाल दे। शुरू में इंजीनियरिंग के बाद अच्छी जॉब पकड़ो, अच्छी अग्रेसिव सेविंग करो, और शाम को ट्रेडिंग करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सर प्लीज शेयर सम स्ट्रैटेजीज इन कमोडिटीज एंड करेंसी मार्केट। सी, मैं कमोडिटीज और करेंसीज का बेसिक्स आपको बताता रहूंगा। मैं कई बार डॉलर रुपए की ट्रेड भी आपसे शेयर करता हूं।
सी करेंसी इज अ वेरी डिफरेंट एनिमल, स्पेशली डॉलर रुपी, क्योंकि ये इसमें आरबीआई का इंटरवेंशन टाइम टू टाइम आता रहता है। वो एक्सपीरियंस है, आप समझोगे। आरबीआई भी देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आप हंसोगे, लेकिन आरबीआई भी जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही देखता है। तो वो कहीं ना कहीं मन बना लेता है, जस्ट लाइक अ पीएसयू। उनको तो प्रॉफिट बनाना नहीं है, वो उनका एक उनका जो हायर मैनेजमेंट है वो उनके डीलर्स को बोल के रखता है कि ये लेवल पे तुमको इंटरवीन करना है। तो एक 10-20 पैसे के नैरो बैंड में आके वो बाई करना चालू कर देते हैं। अगर सेलिंग का इंटरवेंशन है तो सेल करना है। तो आप पुराना 3-4 महीने का ग्राफ उठा के देखो, आपको लगेगा कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है, वहां से बाउंस बैक आता है, पॉइंट पे आता है पॉइंट, वो बहुत अच्छा लेवल होता है बाई या सेल करने के लिए। और 20 पैसे का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो इंट्राडे में। तो ये करेंसी तो बहुत मैनेज्ड है इंडिया में, तो इसलिए बहुत ज्यादा टेक्निकल उसमें चलता नहीं है, फिबोनाची वगैरह। कमोडिटीज जो है उस पर मैं अभी ढेर सारे वीडियोस बनाऊंगा। टर्टल ट्रेडिंग भी सोच रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन करूं एक वेबिनार लेके, तो थोड़ा इंतजार करिए। वो एक क्यूएनए में समझाना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको वो स्ट्रेटजीज आपसे डिस्कस करूंगा। अनिल कुमार ने पूछा है व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर बिगिनर, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, लोगों की नॉर्मल एडवाइस क्या होती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, लेकिन मैं बोलता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको एक दिन में ज्यादा ट्रेड करने को मिलता है। आप सबसे बड़ी चीज जो ट्रेडिंग में सीखनी होती है वो होती है स्टॉप लॉस कहां लगाना है, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो क्या करना है। नॉर्मली मिस्टेक बिगिनर की क्या होती है, स्टॉप लॉस मन में तो हिट हो गया, लेकिन हमने सिस्टम में नहीं डाला, हमने उसको लिया नहीं, हम उसको होप में बैठ गए, हम प्रे करने लगे और हमारा पोजीशन साइज गड़बड़ था। तो ये सारी चीजें करेक्ट हो जाती हैं इंट्राडे में, क्योंकि आप जल्दी जल्दी ट्रेड करते हो, जल्दी जल्दी सीखते हो। अगर जैसे कंपेयर करें, अगर 2 वीडियो गेम है, एक वीडियो गेम ऐसा है जो आपको 10 मिनट में गेम ओवर हो जाता है और फिर 10 मिनट बाद एक नया गेम चलता है। दूसरा वीडियो गेम जैसे कि एजेस ऑफ एम्पायर है, या जो स्ट्रेटजी गेम्स होते हैं जो 10-10 12-12 घंटे चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हो आप, या कोई भी एफपीएस गेम खेल रहे हो, तो 10 मिनट में आप मर गए, फिर से जिंदा हुए। उससे क्या होता है, आपका सीखने बहुत जल्दी जल्दी क्विकली आप लर्न करते हो कि आपको कौन सी गन सूट करती है, कहां पे छुपना है, कहां से मारना है, कहां अटैक करना है। एजेस ऑफ एम्पायर में आपका लर्निंग कर्व, अनलेस आप किसी का गेम देख के सीख रहे हो, बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि 10 घंटे एक गेम चलता है। इट्स लाइक अ लाइफ इटसेल्फ। तो मैं रिकमेंड करता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग। डिफिकल्ट होता है, मैं नहीं बोल रहा हूं इजी होता है, ये कोई लॉटरी स्कीम नहीं है कि तुरंत पैसा बनेगा, लेकिन हाँ जल्दी सीखोगे। सर अगला क्वेश्चन है सौगाता बसक से। सॉरी, मैं नाम अगर गलत बोल रहा हूं तो आई एम रियली रियली सॉरी, जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा हूं। सर, फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस इफ आई एंटर फॉर अ ट्रेड इन कैश सेक्शन ऑफ द स्टॉप आफ्टर रन अप ऑफ द स्टॉक, व्हेन शुड आई बुक प्रॉफिट, हाउ टू पुट स्टॉप लॉस। वेरी गुड क्वेश्चन बसक साहब। देखिए, 2 तरीके हैं स्टॉप लॉस यूज करने के, मैं जो यूज करता हूं, और दोनों बहुत अच्छा मेरे लिए वर्क करते हैं। एक तो ये कि अगर आप जो ट्रेड कर रहे हो तो उससे नियरेस्ट उल्टे साइड का जो पिवट है वहां पे स्टॉप लॉस लगाइए, उसके उसके 2-3 पॉइंट नीचे, एकदम पिवट पॉइंट पे नहीं लगाना, क्योंकि जो स्टॉप लॉस हंटर्स है ना, जैसे शिकारी होते हैं ना, वो आते हैं आपका शिकार करने, तो आपको वो वहीं पे वो ढूंढते हैं, वो नियरेस्ट 1-2 पॉइंट सभी ने लगा रखा होता है, वो तो सबको दिखता है। और ट्रस्ट मानिए, इंडिया में आपकी ऑर्डर बुक जो होती है वो सेल हो रही होती है, अगर आपने सिस्टम में डाला है क्यूमुलेटिव, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस कहां है वो दिख जाता है हंटर लोग को। जैसे नाइट विजन कैमरा लेके चलते हैं ना आजकल के जो पोचर होते हैं, जिनको शिकार करना होता है, उनको रात में भी दिखता है, एनिमल्स को नहीं दिखता लेकिन उनको दिखता है। तो सिमिलरली आपका स्टॉप लॉस दिखता है हंटर्स को। तो इसका बहुत बड़ा स्कैम यूएस में भी हुआ था, और वो आप देख भी सकते हैं। वहां पे तो खैर ऑर्डर बुक बेचना लीगल है, यहाँ लीगल नहीं है, लेकिन यहाँ इंडिया में सारे इलीगल काम होते हैं, दवा को फेक बनाने से लेके हर इलीगल काम होता है। तो आप एज्यूम करके रखिए आपकी ऑर्डर बुक भी बिकती है, और ज्यादातर ब्रोकर बेचते होंगे, मैं नहीं बोल रहा सब बेचते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अपना स्टॉप लॉस पिवट पॉइंट से दो तीन पॉइंट नीचे रखो। ये एक तरीका हुआ, अगर आप पिवट पॉइंट से ट्रेड करते हो तो। एक सेकेंड, जैसे कि अगर हम अभी बात करें, मान लीजिए लुपिन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमने लुपिन का ग्राफ आपके सामने खोला हुआ है। तो अगर समझो कि डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है, ये डेली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, मैं इंट्राडे में 5 मिनट चार्ट यूज करता हूं, ओके। तो एक तरीका तो ये हुआ कि अगर मैं यहां पे समझो कि बाई कर रहा हूं, तो एक तरीका तो ये हुआ कि आज का जो ओपन है उसके नीचे, सबसे सिंपलेस्ट होता है, सबसे सेफ होता है। और समझो कि कोई और व्यू बना है, समझो कि यहाँ पे मुझे इसको समझो कि कैसे बताऊं, जैसे बार बार यहां से सपोर्ट लेके लौट रहा है और मुझे यहाँ पे इसका
इसको यहाँ पे बाई करना है, समझो। अभी यहाँ नीचे का पिवट तो बहुत दूर है, राइट? तो इस पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस जो मैं यूज करता हूं, और ये टर्टल ट्रेडिंग बुक से मैंने उठाया था, वो बुक मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, आप बोलोगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा। वो क्या, मैं क्या करता हूं, 2 टाइम्स एटीआर, ये एटीआर मैंने 20 पे सेट किया हुआ है, इसको बोलते हैं एवरेज ट्रू रेंज। आप इसको पढ़िएगा विकिपीडिया पे, आपको आराम से लिटरेचर मिल जाएगा, कैलकुलेट कैसे होता है एंड सो ऑन। इसका मैं 2 टाइम्स, तो अगर मैं यहां पे इसको बाई कर रहा हूं और मैं नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं, तो मैं 2 टाइम्स एटीआर लगाता हूं। तो या तो मैं पिवट का ये पिवट का साइड में लगाता हूं, नहीं तो 2 टाइम्स एटीआर इन दैट टाइम फ्रेम। तो अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूं, और समझो कि अगर मैंने कैसे बताऊं, समझो कि अगर मेरी उम्मीद थी कि यहां से ये बाउंस बैक करेगा या इस लेवल से ये बाउंस बैक करेगा, तो इसके नीचे 2 एटीआर, इसका एटीआर कितना है, 5 है, तो मैं 10 रुपए नीचे यहां से, 1213 का रेट है, तो मैं इसको जस्ट एक सेकेंड गाइस, आप लोग में बहुत से लोगों ने बोला कि मेरा ग्राफ दिखता नहीं। मैं बहुत जल्दी जल्दी दोस्त कोशिश करता हूं कि आपको जो आप मांगो वो आपको दूं। तो अभी दिख रहा होगा 1213 पे अगर मैंने यहाँ पे बाई किया है, क्योंकि यहाँ अपने नियरेस्ट पिवट पॉइंट को छू करके वापस गया था। अगर मैंने ऐसा किया है, अभी इसके नीचे तो कोई गाइडेंस नहीं है, या तो मैं डे लो लगाता, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 5 रुपए दिखा रहा है इसका एटीआर, तो 2 टाइम्स एटीआर, ये मैंने आइडिया टर्टल ट्रेडिंग बुक से सीखा है। और 2 टाइम्स एटीआर मतलब 1203, 1203 कहीं यहाँ पे होगा, तो यहां पे मैं अपना एटीआर लगाऊंगा। ठीक है, इतना दूर। और इसके हिसाब से जो मैं आगे जो भी होगा, सी जितनी एटीआर इतना ब्यूटीफुल इंडिकेटर है कि जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो वो आपका स्टॉप लॉस उतनी दूर रखवाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी का क्रूड इंडिकेटर है। ओके, तो ये एक तरीका है। और दूसरा पिवट पॉइंट्स को यूज करता हूं, जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहता हूं। तो दिस इज अबाउट स्टॉप लॉस। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। Can you give some idea of mean reverting system? This is not on the trend following, but on the mean reverting system. See, जैसे अगर हम निफ्टी की बात करें, ओके, एक ही ग्राफ को दो ट्रेडर्स अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ओके, अभी मैंने ये डेली ग्राफ है आपका निफ्टी का, एक तो इसमें हर बार सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। अब आप देखोगे तो ये बार बार जो है, जो एक एक रेंज में रह रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा रैशनल ये हो सकता है कि ये डेली ग्राफ है, और किसी भी लंबे रनअप के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है। ये मार्केट की एक एक नेचर होता है। यहां पे बहुत गिरा था तो इसने कंसोलिडेट किया, 1 महीना 1.5 महीना गिरने से पहले इसने कंसोलिडेट किया। कहीं भी आप देखोगे ना, तो मार्केट बहुत लंबे समय तक यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट आई तो कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो मार्केट का ये नेचर होता है कि एक बार रनअप के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है। तो अगर आप मीन रिवर्टिंग सिस्टम कर रहे हो, तो जो मैंने लाइंस आपके सामने ड्रॉ करी, इन्हीं लाइंस पे जहां पे एक ट्रेंड फॉलोअर बाई करता है, अगर एक ट्रेंड फॉलोअर इस रेंज में कहीं पे बाई करेगा थिंकिंग कि अब ऊपर के साइड ब्रेकआउट होने वाला है, आप सेल करोगे, और आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, 2 ATR उल्टे साइड। अभी ऐसे जब आपने एक बार मार्केट का नेचर आइडेंटिफाई कर लिया, तो जब ट्रेंड फॉलोअर को छोटे छोटे लॉसेस हो रहे होंगे, तो वही आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स होंगे। ओके, तो बस इतना ही है किसी मीन रिवर्टिंग। और इसको कई तरीके से कर सकते हैं आप, अगर चाहो तो मंथली, अगर आपको पता है कि लंबा कंसोलिडेशन होने वाला है, तो मंथली स्टैडल बेच सकते हो, मंथली स्ट्रैंगल बेच सकते हो, और नहीं तो आप फ्यूचर्स के थ्रू भी कर सकते हो। फ्यूचर्स में आपने यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस आपका 2 ATR, अगर यहां सेल करते हो और इसमें आपका एटीआर चला 250, तो 500 पॉइंट ऊपर, यानी कि 1500, 15,500 पे आपका स्टॉप लॉस, जो कि कभी गया नहीं। आपका प्रॉफिट आएगा, जनरली 1:1 का ही प्रॉफिट होता है, छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं। यहां पे फिर आपने बाई किया, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे बार बार यहां से आके लौट रहा है, आपके बाई पॉइंट से नीचे जाएगा, लेकिन 400-500 पॉइंट नीचे नहीं जाएगा, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ फायदा हुआ तो 1:1 में आप निकाल, तो आपके छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं। अब जब ये रेंज को ब्रेक करेगा, तो आपको एक बार बड़ा लॉस होगा। वो बड़ा लॉस कितना होगा, 2 ATR का, राइट, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 2 ATR अवे है। तो ये शॉर्ट में आपका, मैंने बहुत सिंपलिस्टिकली समझाया है,
ये सब में तो पूरा पूरा लोग एक पूरा वेबिनार कंडक्ट कराते हैं, 25-30 हजार रुपए चार्ज करते हैं। मैं आपको नहीं चार्ज करने वाला हूँ। होपफुली फ्यूचर में मीन रिवर्टिंग को फोकस करके एक दो सिस्टम्स आपको सिखाऊंगा, जिसमें हम लोग 2-3 घंटा पूरा डेडिकेट करेंगे। प्रॉब्लम ये भी आ रही है दोस्तों कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो देखता हूं कि उसमें अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम होता है। लोगों को 5 से 10 मिनट में सारा कुछ सीखना होता है। तो मैं भी अभी अंधेरे में टटोल रहा हूं कि कैसा एक ऑप्टिमम स्वीट स्पॉट ढूंढूं कि जहां मैं अपनी बात भी पूरी कह पाऊं और लोग बोर भी ना हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभिजीत डागर का क्वेश्चन है, आई हैव सीन दैट विक्स एंड ऑप्शन प्राइसेस डू नॉट कोरिलेट लेटली और मे बी दे डू एंड आई कैन नॉट रीड प्रॉपरली। देखिए अभिजीत, मैं आपको बताता हूं, मैं अपने आप को बोस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं काफी सालों से ऑप्शन की ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैंने इंस्टीट्यूट्स में ब्लैक शोल्स और ये ऑप्शंस की जो ग्रीक हैं वो पढ़ाए भी हुए। लेकिन रिटेल के लिए जो 1 साल 2 साल 3 साल मार्केट में है, ग्रीक्स की बहुत जरूरत नहीं है, वॉलेटिलिटी की बहुत जरूरत नहीं है। आप विक्स को देख के एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो कि जैसे अगर आपने मेरा वेबिनार देखा हो कि अगर 20 से नीचे है विक्स या 40 से ऊपर है तो क्या करना है। बहुत डिटेल में जाना विक्स का और वहां से कुछ एक्शनेबल डिराइव करना, मेरे हिसाब से एक रिटेल के पास जो रिसोर्सेज होते हैं इतना इजी नहीं होता है, इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप पहले बेसिक्स को मास्टर करो। आपका क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं। आई हैव सीन दैट विक्स एंड ऑप्शन प्राइसेस डू नॉट कोरिलेट लेटली। कोरिलेशन होता है लेकिन विक्स का कैलकुलेशन क्या होता है, मंथली ऑप्शन पे होता है, वो एवरेज होता है। वो निफ्टी में जो आपका ऑप्शन प्राइसेस का जो ऑप्शन प्राइसेस का जो ऑप्शन चेन होती है उसका मिड पॉइंट लेता है हर ऑप्शन का, और कई बार वो मिड पॉइंट ठीक से फिक्स नहीं होता है, उसमें कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसका कोरिलेशन ज्यादा चाहिए नहीं। हाँ, अगर ये बात है कि अगर आप देख रहे हो कि विक्स लगातार इंट्राडे में भी नीचे गिर रहा है तो आपका भी ऑप्शन का प्राइस वीकली में गिरेगा। उसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है, उसका लीनियर कोरिलेशन नहीं होता है, लेकिन इन सब चीजों की उतनी जरूरत नहीं होती है। जरूरत क्या होती है, स्मूथ एग्जीक्यूशन, और जैसे ही मार्केट का बिहेवियर चेंज हो आप अपना स्टॉप लॉस भी चेंज कर लो, अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लो। आप देखते हो कि मैं ट्विटर पे अक्सर बोलता हूं कि आज मैं लॉन्ग जा रहा हूं, 2 दिन बाद बिना शर्म के बोलता हूं आज मैं शॉर्ट जा रहा हूं। अ ट्रेडर हैज टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन गेटिंग इनटू डिटेल ग्रीक्स। अनूप ने पूछा है, आनंद जी, आई एम ट्रेडिंग स्ट्रैंगल सिंस अ ईयर एंड बीइंग प्रॉफिटेबल, हाउएवर आई एम अनेबल टू डिसाइड व्हेन टू गेट आउट द ट्रेड, आई हैव डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। सी अनूप जी, देखिए डीके का कोई टाइम नहीं होता है। डीके बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। न्यूज एक्सपेक्टेड थी कि नहीं, आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि नहीं, मोदी जी कल बोलने वाले हैं कि नहीं, एक्सपीरियंस के साथ आप सीखोगे। अब मैंने अभी तक नहीं सीखा हुआ है कि डीके का एक श्योर शॉर्ट तरीका क्या है। हाँ, अगर आप स्ट्रैंगल बेच रहे हो इंट्राडे के लिए तो एक चीज जो मुझे लगता है कि काम करती है वो ये है कि एक बड़ा भूचाल आने के बाद अगर थोड़ी कामनेस आप देख रहे हो तो जनरली उसके बाद फॉल डीके तेजी से होता है। अगर जैसे न्यूज कॉन्फ्रेंस थी आरबीआई की, वो हो गई और उसके बाद जो भी जिगजैग होना था विक्स में या आपके ऑप्शन प्रीमियम में वो हो गया, 5-10 मिनट का जो काम आ गया, उसके बाद डीके फास्ट होता है क्योंकि उसके बाद सब लोग अपनी पोजीशन काट रहे होते हैं। ठीक है। श्रीराम ने पूछा, हाय आनंद, पोस्टिंग कमेंट ऑन Q&A वीडियो ऑफ 16 में, आर यू स्टिल ट्रेडिंग योर 920 straddle intraday straddle with 3 different lots, 3 different stop loss? I read in one of your tweets that you are not trading this anymore and you are only doing position. See the see the thing is, this I was trading for more than a year. Definitely system is profitable, but off late with new margin rules etc, slippage has increased, and more number of trades you put, more number of stop loss you put, you are taking more risk with slippage. So for last more than 2 months now, or maybe a month and 40 days, I'm not using it. But having said that, you should definitely try this strategy with 50% stop loss or 25% stop loss in the beginning as forward test. Put your stop loss in the system at 50% each leg or 25% each leg. Try with only one lot. See what kind of slippage you are seeing. Okay. I am also preparing my systems for future from September. I hope you know that there will not be any leverage provided in intraday. So
this profitability of the whole strategy was dependent on little bit of intraday leverage. एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, one thing to notice, don't try when the VIX is in a particular area, which I have explained in the webinar, that when VIX is very low or तो वो चीज का ध्यान रखें. Don't do it on Friday. वो चीज का ध्यान रखें. I still think this strategy is profitable, but in the new regime, see, market is always evolving, regulation is always evolving. So in the new regime, you have to forward test it whether it will work in the future or not. Nobody can guarantee that it will definitely work in future. I'm being very honest with you. Okay, so to answer your question, no, I'm not using it every day. But if I see that market is going to be in a very tight range, especially after a big candle formation, if second candle is inside bar, I tried this strategy. Half the time I'm successful. Okay, so I have added more filters. I have added more strategies which I'm using. So I'm not using this religiously every day now. Sagar is saying, sir, I'm not able to catch any breakout on time. After breakout, it's tough to enter the trade. How to handle it? सागर जी, ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा. मैं आपको काफी ब्रेकआउट ट्रेड सजेस्ट करता रहता हूँ, फिल्टर्स में भी दिखाता रहता हूँ कहाँ पे कौन सा ब्रेकआउट ले सकते हैं. आप अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे अगर यूपीएल में आपको ट्रेड लेना था, समझो, सॉरी, आपको लुपिन में मान लो ट्रेड लेना था. ये हमारा 14 तारीख का ग्राफ है लुपिन का, और मान लो कि सुबह से ही सेलिंग चालू हो गई और आपको लगा कि यार ये जब इसने प्रीवियस डे का ये लो पॉइंट्स क्रॉस किए हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ, 280 पे लगा देता हूँ या डे हाई पे लगा देता हूँ, और आप देख रहे हो कि नीचे आ रहा है, आपको पता नहीं और आपके पास एल्गो भी नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप? सेलिंग का स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हो आप. तो जब मार्केट यहां पर है और तेजी से गिर रहा है, 1202 पे है, तो आप 1190 का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो सेलिंग का, कि जैसे ही 1190 आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा. ये मैं करता हूं, लेकिन याद रखना है उसको करने के बाद फिर गर्लफ्रेंड से फोन पे नहीं बतियाना है. जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा स्क्रीन देखते रहना है और उसका अपोजिट साइड का बाई एसएल ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के तुरंत बाद लगाना है. क्योंकि ऐसा कई बार होता है, आपका ऑर्डर हिट होगा और एकदम से उल्टी कैंडल बन जाती है, जैसे यहां पे हुआ. समझो अगर आपने यहां लगाया होता और अगली कैंडल बनती चली गई तो आप 15 मिनट में आपका अकाउंट बर्बाद हो जाएगा. तो इसलिए जैसे ही हिट हो आपको देखते रहना है. ये होगा आपकी मूव मिस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हिट हो अपोजिट साइड का एसएल आपको तुरंत लगाना, ये याद रखना. ठीक है. थैंक यू सर फॉर क्यूएनए के लिए. हाउ टू डिसाइड द 1% एसएल इन एफएनओ ट्रेडिंग? देखिए, कई बार वो मैंने आपको ये इसी वीडियो में बताया आपको कि आप यहां लगा, यहां आपने सेल किया, यहां स्टॉप लॉस लगाओ या यहां स्टॉप लॉस लगाओ, यहां स्टॉप लॉस लगाओ, कहीं भी स्टॉप लॉस लगाओ. अगर यहां लगाते हो तो आपका स्टॉप लॉस तकरीबन 12 पॉइंट है, फिर 20 पॉइंट या 30 पॉइंट, कितना भी दूर लगाओ, वो डिपेंड करता है आपके उस पे टेक्निकल्स पे. आपने समझो 30 पॉइंट का लगा लिया, तो आपका 1% अगर 2 लाख का कैपिटल है तो उसका 1% कितना हुआ? 2000 रुपए. तो 2000 को अपने पॉइंट से डिवाइड कर लो. तो अगर 2000 को 20 पॉइंट से डिवाइड करोगे आप तो कितना आता है? उतनी क्वांटिटी आप कर सकते हो. हो सकता है कि आप फ्यूचर्स ना कर पाओ उस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि कई फ्यूचर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो ट्रेड अपन नहीं लेंगे. रिस्क मैनेजमेंट से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेंगे जिंदगी में, इस चीज की कसम खा लो. 2 साल सर्वाइव करोगे विथ वेरी मिनिमल लॉस, और जो सीखोगे ना, वो लोग आएंगे आपके पास सीखने के लिए कि दोस्त ये सिखा दो. 2 साल सर्वाइव करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है. तो रिस्क मैनेजमेंट से अपन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे. अगर उस चीज का एफएनओ नहीं ले पा रहे क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि एसएलएम को वाइड रखना है, तो एसएल से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे. हमारा 1% कैपिटल का जितना आता है वो डिवाइडेड बाई हमारे एसएल के जो पॉइंट्स हैं, दैट बिकम्स आवर क्वांटिटी. हेमंत, हाउ टू ट्रेड यूएसडी आईएनआर फ्यूचर विथ हेज? देखिए, हेज का कैसा है कि अगर इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में आपका स्टॉप लॉस ही हेज है. दूसरे सारे स्टॉप लॉस बहुत महंगे होते हैं, तो मैं इंट्राडे में तो कभी हेज यूज नहीं करता हूँ, स्टॉप लॉस यूज करता हूँ. और ये आपको लोग बताएंगे आपका स्टॉप लॉस जंप हो गया, फ्रीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया. होता है यार, अगर गाड़ी चलाओगे कभी कहीं से खरोच लगेगी, कभी हो सकता है बम्पर भी टूट जाए, हो सकता है गाड़ी एक्सीडेंट भी हो जाए. गाड़ी चलाना छोड़ देते हो क्या? नहीं छोड़ते हो ना. ट्रेडिंग कर रहे हो तो सब होगा. अगर 1% पे लगाया है सेल,
जंप भी हो गया, करते 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 गाड़ी पकड़ते पकड़ते 4-5% का भी लॉस हो गया, बिग डील। लेकिन अगर आपने पोजीशन बहुत बड़ी ली है तो वो अनफॉरगिविंग हो जाता है, इसलिए पोजीशन साइज छोटी रखो। इंट्राडे में है तो एसएल लगाओ, वही आपका हेज है। कमिंग टू पोजिशनल, अगर पोजिशनल में चाहे यूएसडी आईएनआर हो, यूएसडी आईएनआर में एक खास बात ये होती है दोस्तों कि कोई सर्किट नहीं होता नेक्स्ट डे के लिए। 1 रुपया 2 रुपया कितना भी खुल सकता है, अगर किसी का असैसिनेशन हो गया, गॉड फॉरबिड वॉर हो गई, कहीं कोई प्लेन क्रैश हो गया एनिमी टेरिटरी में, या कुछ हो गया, हाईजैक हो गया, तो डॉलर रुपी तो अपने मन से कहीं भी खुल जाता है। पिछले 20 साल में ऐसा कई बार हुआ है। कांधार हाईजैकिंग से लेके राजीव गांधी का असैसिनेशन से लेके आप जब देखने जाओगे तो ऐसी ऐसी हॉरेबल चीजें हुई हैं, अनथिंकेबल चीजें हुई हैं, उससे आपकी ट्रेड उड़ जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना। इसमें क्या है कि अगर आपने यूएसडी आईएनआर का पोजीशन लिया हुआ है, जैसे मैंने यूएसडी आईएनआर का ये खोल दिया आपके सामने, अब समझो कि ये जैसे मैंने बताया था ना कि आरबीआई का मुझे लग रहा है कि चलो यहाँ पे 73 के आसपास इसके नीचे जो है कहीं आके आरबीआई बाई करना चालू करेगा, अगर लगता है तो आपने मान लो कि समझो बाई कर लिया। अब इसका एक ही वो है, एक तो तरीका है कि बाई करने के बाद बजाय आप स्प्रेड बना लो, ठीक है। तो जब आप स्प्रेड बनाते हो, कॉल का स्प्रेड या पुट का, डेबिट स्प्रेड बना सकते हो या क्रेडिट स्प्रेड बनाते हो, तो उसमें बाय नेचर आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों लॉक हो जाता है। अगर आपको चाहिए कि मैं स्प्रेड पे एक वीडियो बना के आपको दिखाऊं तो मैं अलग से दिखा दूंगा। उसमें करना क्या होता है कि अगर यहां पे आप समझो कि बाई कर रहे हो, ठीक है, कि यहां से ऊपर जाएगा ऐसा सोच के आप बाई कर रहे हो, तो आप जो नियर ये है 74 का कॉल जो है वीकली कॉल, वो आप बाई कर लोगे, और लेट से 74 50 का या 74 25 का कॉल जो है वो आप सेल कर दोगे, ठीक है। तो वो कॉल स्प्रेड आपने बाई कर लिया। सिमिलरली आप पुट स्प्रेड भी बना सकते हो। कॉल स्प्रेड करोगे तो आपको कॉस्ट 1 देनी पड़ेगी और आपका जो प्रॉफिट होगा वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो सकता है। अगर आप पुट स्प्रेड सेल करते हो उसमें भी आपका लॉस कैप्ड होता है। तो पुट स्प्रेड अगर आप एटीएम पुट सेल करते हो और उसके बाजू वाला आप अगर बाई करते हो तो उसमें भी आपका एसएल एम्बेडेड होता है। ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। Which strategy we should use in monthly expiry of INR? आयरन कॉन्डोर बटरफ्लाई। सी आयरन कॉन्डोर बहुत अच्छा वर्क करता है छोटे कैपिटल पे, डॉलर रुपये, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आयरन कॉन्डोर में भी लॉसेस हो सकते हैं, ऑल्दो डिफाइंड लॉसेस हो सकते हैं। आयरन कॉन्डोर मेरा फेवरेट है, तो आयरन कॉन्डोर ट्राई करो, मंथली में बहुत अच्छा रहता है। और आपको कई बार तो अच्छा 4% 5% भी कई बार मिल सकता है। आई होप आपको आयरन कॉन्डोर एडजस्ट करना आता है। नहीं आता तो कमेंट में बताना, और नहीं तो टेस्टी ट्रेड का वीडियो है वो भी देख लेना, आयरन कॉन्डोर को एडजस्ट कैसे करें। उसको भी करना पड़ता है एडजस्ट, मतलब उसको हालांकि बहुत बात बात करना पड़ता है, इतना जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर स्विफ्ट मूवमेंट्स हो रही हैं तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग ट्रेंड? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट एक 30 सेकंड्स का ब्रेक देना, मैं जस्ट पानी पी के आता हूँ दोस्तों, बड़ी तेज प्यास लग गई। हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके, तो अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो आपको बड़ा कैपिटल चाहिए दोस्तों। उस पर आप मत जाओ कि मार्जिन कितना चाहिए या नहीं चाहिए। मिनिमम आपको 5 लाख तो चाहिए ही चाहिए, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर से कर रहे हो तो। जैसे कि निफ्टी का अगर फ्यूचर आप ट्राई करते हो 1 आवर के चार्ट पे अगर ट्राई करते हो, समझो कि जैसे मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं और उस हिसाब से आप वो लेते हो, तो आपको मिनिमम 150-200 पॉइंट दूर अपना एसएल लगाना पड़ेगा।
तो अगर आपने समझो कि 75 का लिया है और 100 पॉइंट दूर है, तो 10,000 का लॉस एक बार में हो सकता है। 5 लाख के कैपिटल पे वो 2% का लॉस हो गया। तो 5 लाख का कैपिटल भी 100 पॉइंट के एसएल के लिए दूर है। और ये मैंने आर्ली चार्ट लिया है। डेली में आपका जो एसएल है वो और भी वाइड होगा, राइट। अगर डेली चार्ट उठाओगे, डेली का तो एटीआर ही आपका मेरे हिसाब से 250 है, स्विंग पॉइंट्स पे लोगे, फिर भी आप 100 पॉइंट का तो एसएल लगाओगे लगाओगे। तो आपको एफएनओ में, अगर आपको इंडेक्स में, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको बड़ा कैपिटल चाहिए। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आपको उतना बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत नजदीक होता है। जैसे कि अगर मैं ट्रेंड फॉलोइंग, यहाँ पे गिरना चालू हुआ था 12 मई को, और समझो कि ये नीचे गया और मैंने यहाँ पर सेलिंग करी होती और मेरा स्टॉप लॉस अगर यहाँ होता, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, तो ये तो मैंने अगर पोजीशन ली होती 12,800 पे और 12,860 पे मेरा स्टॉप लॉस होता, या अगर डे हाई पे मैं स्टॉप लॉस लगाता डे हाई के आसपास, तो मेरा 12 तो 30 पॉइंट दूर होता मेरा स्टॉप लॉस। तो अगर मैंने 75 निफ्टी एक पॉइंट करा हो, एक क्वांटिटी करी होती, एक लॉट करा होता और मेरा 5 लाख का कैपिटल होता, तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो 30 पॉइंट, तो सातरे एक, तो 75 इंटू 30, राइट। तो कुछ आपका 1% से कम आपका स्टॉप लॉस होता है एक बार में, तो आप क्या पता कई बार दो लॉट भी आप कर पाते। तो मेरे हिसाब से आप 5 मिनट चार्ट पे इंट्राडे करो, अगर आप फ्यूचर्स का पोजीशन करना चाहते हो। कैसे भी सेटअप बनाओ, वो आपकी पूरी फ्रीडम है। ये टेक्निकल्स को समझना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पोजीशन साइजिंग ऐसी रखनी है कि 1% से ज्यादा हमको लॉस ना हो। एक क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ DC10 एंड DC20 इन योर चार्ट सेटअप। सी DC10, मैंने ये दोनों जो DC10 और DC20 अपने चार्ट में लगाया हुआ है, इस पर्टिकुलर में नहीं है। आप अगर देखना चाहो तो डॉनचेन चैनल को बोलते हैं डीसी, ओके। ये मैंने टर्टल ट्रेडिंग वाली बुक से उठाया था और मुझे ये इंडिकेटर मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। तो इसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग 20 का होता है, ओके। और टर्टल ट्रेडिंग जो बुक है उसमें दोनों दिया हुआ है, DC10 भी और DC20 दोनों दिया हुआ है। ये मैंने आपके सामने 10 और 20 दोनों लगा दिया। तो मैं कैसा फॉलो करता हूं कि ये मुझे बताता है कि ब्रेकआउट कब हो रहा है। विजुअली बहुत इजी होता है देखना। डॉनचेन चैनल कुछ नहीं होता, पिछले 20 कैंडल का हाई और लो को ये ड्रॉ करता है। बहुत सिंपल है, पिछले 20 कैंडल का हाई और लो जो है वो ये ड्रॉ करता है। तो ये जैसे है, अब ये शिफ्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि ग्राफ पीछे 20 कैंडल पीछे ये ऊपर जा रहा था, तो ये भी ऊपर जा रहा है। तो ये हाई और लो को विजुअली दिखाता है। वो मैं बुक आज फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। सिर्फ 35 पन्ने की बुक है दोस्त, उसको 4, 5, 10 बार आप फिर से पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सिर्फ 35 पेजेस की बुक है। मुझे पता है बड़ी बुक बहुत लोग नहीं पढ़ पाते। तो इसमें और 10 DC से अक्सर मैं देखता हूँ कि रिबाउंड आता है। तो कहीं भी आप देखोगे, अभी अभी तो इस ग्राफ में आपको विजुअली नहीं दिख रहा है, लेकिन 10 DC से अक्सर रिबाउंड आता है। मैंने ये पर्सनली देखा है। तो 10 DC पे जब जाता है तो कई बार मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ। तो 10 DC इसके लिए यूज करता हूँ। टर्टल ट्रेडिंग बुक में स्टॉप लॉस लेने के लिए 10 DC बताया गया था उस टाइम फ्रेम में, कमोडिटी में। याद रहे, टर्टल ट्रेडिंग जो है इंडेक्स में और स्टॉक में एज इट इज वर्क नहीं करता है, कमोडिटीज के लिए बना था वो। बिस्वा ने पूछा, सर एवरी टाइम आई हैव प्रॉब्लम इन एग्जिट एंड प्रॉफिट बुकिंग, आई कांट होल्ड टिल एक्सपेक्टेड टारगेट, प्लीज एडवाइस। आपको प्रॉफिट को ट्रेल करना सीखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। प्रॉफिट को आपको ट्रेल कैसे करना है, जैसे कि समझो कि अगर आप 1 आवर चार्ट देख रहे हो, कि आप यहां से मान लीजिए आपने पोजीशन उठाई है यहां से, और आप लकी थे और आपको दिसंबर में समझ में आ गया था कि ऊपर जाएगा और आपने पोजीशन उठाई थी, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पोजीशन उठाई, आपका कहीं पिवट लो या यहाँ थोड़ा सा, ये 1 आवर चार्ट है, ग्राफ में आपका नीचे होगा। अब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है। देखिए, किसी के लिए भी प्रॉफिट देखना और उसके बाद वो प्रॉफिट घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इतना इजी नहीं होता किसी के लिए भी, चाहे वो प्रोफेशनल ट्रेडर ही क्यों ना हो। ऐसे में सबसे अच्छा रहता है, जैसे बोलता है ना कि जहाज जो है जब डगमगा रहा होता है,
तो सभी को डर लगता है। जैसे जहाज, जो पानी वाला जहाज होता है, उसमें तूफान आ गया, डगमगा रहा है, सभी को डर लगता है। लेकिन अगर आपके हाथ में एक माला है और आप उसको जप सकते हो, पता नहीं उसमें कितनी पावर होती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से ढांढस मिलता है, आपको कहीं ना कहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ यू हैव समथिंग टू होल्ड ऑन टू, आइदर बिलीफ और समथिंग फिजिकल, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। तो मुझे नहीं पता है कि ट्रेड जो है कितना ऊपर जाएगी, ये जाती रहेगी, या यहां से एक सडन डाउनफॉल आ जाएगा जैसे ये आया था, नोबडी नोज। लेकिन जब आप किसी मेथड से ट्रेल करते हो, चाहे वो पिवट से ट्रेल करो, जो मैंने अक्सर अपने वीडियोस में बताया है, या आप 20 डीसी से ट्रेल करते हो, तो आपको एक मेथड, एक रूल पता होता है जिसको आप होल्ड ऑन टू कर सकते हो, जिसको आप पकड़ के बैठ सकते हो, जिद्द पाल सकते हो कि जब तक वो टच नहीं होगा तब तक मैं तो बाहर नहीं निकलने वाला हूं। तो एक कोई मेथड पकड़ लो, चाहे पिवट का मेथड पकड़ लो, चाहे 20 डीसी का पकड़ लो, चाहे वीवैप का पकड़ लो, कोई भी, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सारे अलग अलग धर्मों की मालाएं हैं, कोई 108 बार जपता है, कोई कुछ जपता है, किसी की व्हाइट होती है, किसी की ब्लैक माला होती है, उस पर मत जाओ। एनी ट्रेलिंग मेथड इज एज गुड एज योर मेथड और हिज मेथड। बट एक कोई भी ट्रेलिंग मेथड पकड़ लो, उसको लिख लो अपने दिमाग में कि भैया ये मुझे वॉयलेट नहीं करना है, यही तरीका है। ऐसे ही मैंने सीखा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। I see many channels posting profit every day and finding breakout stocks. How do they catch it? यार अभी वो लोग कैसे कैच करते हैं मुझे पता नहीं, बट ब्रेकआउट में 50% सक्सेस रेट भी बहुत होता है। 50, अगर मे बी कि दे आर पोस्टिंग ओनली द प्रॉफिट पार्ट, एंड जब लॉस होता है तब का नहीं शेयर कर रहे। और इसमें मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूं, मैं पहले बीच में लॉस शेयर करता था, तो बड़े तगड़े से लोग ट्रेडिंग करते थे कि तेरे को आता नहीं है। मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि यार ट्रेडिंग है, आप भी इंसान हो, आपको भी लॉस होता है, किसी किसी बहुत पुराने ट्रेडर को भी लॉस होता है, सबको लॉस होता है। तो लेकिन बहुत तगड़ा लोग ट्रोल करते हैं, तो इसलिए शायद वो लोग केवल प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस नहीं दिखाते। इवन जो बड़े बड़े आपका जैसे कि मितेश है या मनु है, उनके भी आप देखोगे, अगर गलती से कभी लॉस शेयर कर दिया है मनु भाटिया, तो अक्सर अक्सर एक दो बार शेयर करा है, तो उसका आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो देखोगे लोग उनको भी सिखाने लगते हैं कि ऐसे करना था यार, देखो तेरे को बाय नहीं करना चाहिए था ना, सेल करना चाहिए था, या तुमको तो पता ही नहीं था ना रेंज बाउंड था। तो मैं लेकिन आपका क्वेश्चन का समरी आंसर यही है कि शायद बहुत लोगों के तो देखो सच नहीं होते, क्योंकि ट्रेडिंग में रोज रोज प्रॉफिट तो नहीं हो सकता है। और दूसरा ये है कि वो लोग, जो लोगों के जेन्युइन भी हैं, वो लोग केवल प्रॉफिट दिखाते हैं, क्योंकि लॉसेस में आधे लोगों को तो केवल ट्रोल करने में मजा आता है, सीखना कुछ होता नहीं है, तो वो लोग बेसिकली ट्रोलिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। हाउ टू मेक यू ओन सेटअप, पहला उसका सागर जी ये है, डिसाइड करिए ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप बनाना है या मीन रिवर्टिंग बनाना है। ट्रेंड फॉलोइंग बनाना है तो बहुत इजी है, ब्रेकआउट को देखिए, या किसी भी टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट को सेलेक्ट करिए। स्टॉप लॉस का तरीका मैंने बता ही दिया है, 2 ATR से कर सकते हैं या फिर पिवट से कर सकते हैं। मीन रिवर्टिंग बनाना है तो अपन ऑप्शन की दुनिया में जा सकते हैं, स्ट्रैडल बना सकते हैं, स्ट्रैंगल बना सकते हैं, उसको स्टॉप लॉस बेस कर सकते हैं या एडजस्टमेंट बेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बेस करना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि हर लेग पे कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कंबाइंड स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अगर आपको एडजस्टमेंट बेस करना है तो टेस्टी ट्रेड में काफी वीडियोस दिए हुए हैं, मैं भी शायद हिंदी में वो वीडियो बनाऊंगा। प्री मार्केट ट्रेड, व्हाई नॉट टेक ट्रेड ऑन फर्स्ट, pre-market trade sir, why not take trade on first minute candle breakout instead of candle color? आप अलग अलग ट्राई करो, मैंने आपके साथ वो शेयर किया जो मैं करता हूं और जो मुझे हेल्प मिली है, शिवाज जी। तो आप अलग अलग ट्राई करो, और मैं नहीं बोल रहा हूं कि कैपिटल डाल के ट्राई करो। रोज का प्री मार्केट ऑब्जर्व करो, उसका वॉल्यूम देखो, उसका 1 मिनट देखो, उसका ब्रेकआउट देखो। आप 15 दिन के अंदर आपका अपना सेटअप, सबसे इजी सेटअप जो होता है प्री मार्केट होता है, 15 दिन के अंदर आपका हो जाएगा। मैं जो फॉलो करता हूं मैंने आपसे हु बहू शेयर कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे एक दो लोगों का मैसेज आया मेरे ट्रेडर फ्रेंड्स का कि तू फ्री में सेटअप क्यों बांट रहा है, ये व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव इट, अचीव थ्रू, ऐसा मुझे मैसेज आया। मैं मैसेज तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपसे कसम खा के कह रहा हूं कि ऐसा मैसेज आया, और मैंने आपसे बिल्कुल सरल तरीके से शेयर कर दिया, और उस पर बहुत ट्रैक्शन भी नहीं आया, बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आया। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सेटअप बताने से वो वर्क करना बंद हो जाएगा या हजारों लोग करने लगेंगे, मेरी इतनी बड़ी रीच नहीं है।
लेकिन मैं जो करता हूं मैंने आपको बता दिया है, आप उसमें थोड़ा वेरिएशन डालो, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लो, 1:2 पे कर लो, या उसका देख लो कि कौन सी कैंडल पे क्या एक्शन लेना है, आप 15 दिन के अंदर आपका सेटअप रेडी हो जाएगा। सर शॉर्ट्स, अगला क्वेश्चन है शुभाल का, सर शॉर्ट बिल्डअप अनवाइंडिंग एक्सेट्रा ऑप्शन डेटा से कैसे आइडेंटिफाई करें? शॉर्ट बिल्डअप अनवाइंडिंग ऑप्शन डेटा से कैसे, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्लीज। ये थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, इसके लिए अपने आप में एक पूरा सेशन लगेगा। लेकिन ये है कि जब आप देखते हो कि प्राइस में सडन मूवमेंट हो, और ओपन इंटरेस्ट जहां पे भी आप ट्रैक कर रहे हो, फ्री वेबसाइट पे ट्रैक कर रहे हो या पेड पे ट्रैक कर रहे हो, ओपन इंटरेस्ट में प्राइस के सडन मूवमेंट के साथ गिरावट आए तेजी से, इसका मतलब कि जो भी है पुट सेलर है या कॉल सेलर है, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करने को रेडी नहीं है। और मुझे पता है कि जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन भी रहती है, तो अगर वो लोग पोजीशन काट रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट उस डायरेक्शन में बहुत तेजी से जाने वाला है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आप इजीली फैदम भी कर सकते हो 15-20 दिन या 1 महीने 2 महीने की प्रैक्टिस से, और उसके हिसाब से आप वहां पे पैसा डाल सकते हो। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक रीडिंग में या आधा यूट्यूब का वीडियो देख के नहीं समझ में आएगा। एक ही वीडियो को बार बार देखिए, उस सब्जेक्ट पे कई वीडियो देखिए, और उसके बाद डेली बैठ के ओपन इंटरेस्ट, जैसे समझो कि आपने मिशन बना लिया कि मेरे को ओपन इंटरेस्ट का शॉर्ट बिल्डअप और उसकी अनवाइंडिंग समझनी है, तो पहले आप बाकी का कुछ मत देखो, उसी पे फोकस करो। एक तरफ प्राइस खोल लो, एक तरफ ओपन इंटरेस्ट खोल लो, जबकि मैंने अपने वीडियो में दिखाया हुआ है आपको कि क्या सोर्स अप्लाई करना है। और उसके बाद देखो कि प्राइस में जब भी सडन मूवमेंट आएगा, 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल का, हर बार ओपन इंटरेस्ट में अनवाइंडिंग नहीं हो रही है, कब अनवाइंडिंग हो रही है, और आप देखोगे उसके बाद वो प्राइस को एक्सेलरेट करता है। ये आप एक्सपीरियंस से आराम से समझ जाओगे। तो इसमें आपको पैसे भी डालने की जरूरत नहीं है बस, लेकिन बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है, बहुत फोकस के साथ ऑब्जर्व करना है। बिस्वा ने पूछा हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग कंसिडरिंग रूरल एरिया एक्सपेंसेस अवॉइडिंग एफएनओ इनिशियली। सी ट्रेडिंग को अपना लिविंग बनाने के लिए देखिए, सब लोग पूछते हैं कि कैपिटल कितना चाहिए, कि आपको ट्रेडर ही बनना है, और ये सबका सपना होता है। अभी तक फुल टाइम ट्रेडर मैं भी नहीं बन पाया हूँ, मैं भी एक इंस्टीट्यूशन के लिए ट्रेडिंग करता हूँ, साथ में अपना भी करता हूँ। ये सबका सपना होता है कि मैं चड्डी में बैठूं और आराम से ट्रेडिंग करूं, पैसे छपते रहे, अकाउंट में आते रहे, कुछ और ना करना पड़े। सबसे अच्छा प्रोफेशन है, अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो तो सबसे अच्छा प्रोफेशन है। लेकिन जब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन नहीं जाते हो, तो फुल टाइम ट्रेडिंग में उतरने की सोचना भी नहीं। कितना भी जॉब को अवॉइड करो, कितनी भी पढ़ाई खराब लगे, कितना भी दूसरी समाज की दिक्कतों से दूर भागने के लिए ट्रेडिंग मत करो। मैंने जैसा बोला, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करो, पहले इवनिंग में करो, क्रूड ऑयल में करो, गोल्ड में करो, सेम ही मेथड्स लगते हैं, सेम ही सब कुछ होता है। जब एक बार सक्सेस आ जाए, या पोजिशनल करनी है तो बीटीएसटी कर लो, निफ्टी में, स्टॉक्स में बीटीएसटी, कैसे भी करके 2 साल मिनिमम प्रॉफिटेबल हो, पैसे को डबल कर पाए, तो पहला स्टेप आता है कि हाँ भाई अब मैं प्रॉफिटेबल, अब मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूं। रूरल एरिया में रह रहे हो या अर्बन एरिया में रह रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, और वो एक्सपेंसेस जो है उसका मिनिमम 15 to 20 टाइम्स आपका। और एक्सपेंसेस कम करो, अगर ट्रेडर बनना है तो एक्सपेंसेस शुरू में कम करने पड़ेंगे। 15-20 हजार में भी काम चल जाता है, और बहुत लोगों को 2 लाख भी कम पड़ते हैं। एक्सपेंसेस कम करो, और जो कम में आने के बाद जो एक्सपेंसेस बचते हैं, 15 से 20 गुना उसका रिजर्व कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ये मैं ईयरली एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। अगर रूरल एरिया में रह रहा हूँ, 5 लाख का आपका अगर वो है, तो उसका 10 गुना, मतलब 50 लाख तो आपका रिजर्व कैपिटल होना चाहिए। ये समझ लो 50 लाख की सेविंग हो गई, किसी भी दूसरे मेथड से आपने कमाई हो, बचाई हो, या एनीथिंग ऑन विच यू कैन फॉल बैक ऑन। फिर आपका आता है ट्रेडिंग कैपिटल, वो मेरे हिसाब से 2 लाख से 3 लाख रखो, और उससे शुरू करो। एक बार अच्छा करने लगोगे, फिर आप दूसरों का कैपिटल मैनेज कर सकते हो, और कैपिटल डाल सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो। तो शुरू का जो मैं बोल रहा हूँ 50 लाख जो बोल रहा हूँ, वो आपको अपने आने वाले कुछ सालों के एक्सपेंसेस के लिए रखना पड़ेगा, ताकि ट्रेडिंग से आपके बच्चों की फीस ना देनी पड़े, ट्रेडिंग से आपको अपने मकान का किराया ना देना पड़े। अगर वो प्रेशर रहेगा तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पहले 2 साल पार्ट टाइम ट्रेडर रहो, प्रॉफिटेबल बन जाओ। जब प्रॉफिटेबल हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए
कड़वा सच है दोस्तों, 40 से 50 लाख चाहिए अलग से अपने आने वाले इमरजेंसीज के लिए और एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। और ट्रेडिंग कैपिटल कम से कम 2 3 5 लाख रखो और उससे ट्रेडिंग चालू करो। लोग बहुत जल्दी स्केल अप कर पाते हैं। आप अगर बड़े ट्रेडर्स का पुराना ट्वीट देखोगे, 2 साल 3 साल पुराना ट्वीट, उन्होंने भी बहुत छोटे कैपिटल से शुरू किया था। तो आप अगर अच्छे ट्रेडर हो तो बहुत जल्दी स्नोबॉल इफेक्ट आ जाएगा। तो ये मैं आपको 5 साल का प्लान बता रहा हूँ। 2 साल पार्ट टाइम ट्रेडिंग जिसमें आपने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, अगले 3 साल 40 से 50 लाख का कैपिटल रिजर्व में और 3 से 5 लाख का कैपिटल ट्रेडिंग के लिए। और अगर वो भी 3 साल अगर अच्छा चल गया तो फिर तो स्काई इज द लिमिट। सौरभ, ऑप्शन चेन को कैसे समझना है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं बहुत ही जल्दी। ये Q&A में समझाना मुश्किल है, प्रॉमिस है, अब जल्दी बनाऊंगा वीडियो। हाउ टू मेक कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। चैतन्य जी, सच बोलना मैं आपसे प्रॉमिस किया है, झूठ नहीं बोलूंगा। कंसिस्टेंट इनकम बोल के स्टॉक मार्केट में कुछ है नहीं। अभी मैं आपको यूट्यूब पे सर्च करूं तो 90% वीडियो उसी पे बने और सारे वीडियो झूठ है। मैं 15 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं और ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे हर महीने इनकम बने। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अप्रैल में मेरी इनकम नहीं बनी। मे भी ऐसे ही सो जा रहा है। तो मुझे नहीं पता कंसिस्टेंट इनकम का कौन सा मेथड होता है। हाँ, हर क्वार्टर आप पैसे बनाओगे, हर 6 महीने में बनाओगे, हर साल बनाओगे, ये तो पॉसिबल है। लेकिन कंसिस्टेंट इनकम का कोई तरीका नहीं है। ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे आपको, बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मंथली इनकम स्ट्रैटेजी, वो झूठ है। मत फंसना, वैसे वेबिनार मत अटेंड करना, वैसे लोगों को फॉलो मत करना, ठीक है। ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम आ सकती है। रेगुलर मतलब 3 महीने का एवरेज, 4 महीने का एवरेज पॉजिटिव रहे, ऐसा पॉसिबल है। 6 महीने का एवरेज पॉजिटिव रहे, ऐसा पॉसिबल। लेकिन शुरू में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि अगर आपका 4 लाख 5 लाख का कैपिटल है या 50 लाख का, 50,000 का कैपिटल है, तो ऐसा आप कुछ कर लो कि 5 से 10 हजार रुपए महीने हर महीने आने लगे। ऐसा नहीं होता दोस्त। मैं जब सेल्स में था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में और 5 साल से ट्रेडिंग में, मैं 1000 से ऊपर लोगों से बात कर चुका हूं पर्सनली। ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूं। सबका ट्रेडिंग मेथड बात कर चुका हूं, कैसा कितना कमाते हैं, कैसा। नहीं पॉसिबल है शुरू में दोस्तों। ऐसे ऐसे ड्रीम्स मत पालो। इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा, लोग कर भी ले जाते होंगे, मैं तो नहीं मिला हूं अभी तक किसी से। कोशिश करो इस चीज को सीखने की। तो कंसिस्टेंट दिमाग से निकाल दो, इनकम भी दिमाग से निकाल दो। ये एक अलग ही आर्ट है। एक जैसे आप बिजनेस करते हो, अगर आपने मान लो कि एक होटल ही खोला, अच्छा होटल खोल लिया जिसमें 200 बेड, 200 कमरे हैं और एक कमरे का किराया 1500 रुपए है, तो हर महीने आपको बिजली का बिल देना है, स्टाफ का एक्सपेंसेस देना है, मटर पनीर के लिए मटर मंगानी है, पनीर मंगानी है, सब कुछ काटने के बाद हर महीने प्रॉफिट होगा। एटलीस्ट शुरू में इतनी स्टेबिलिटी तो बिजनेस में नहीं आती है। चीजों को समझना पड़ता है, कौन सा स्टाफ चोरी कर रहा है, बिजली के कहाँ पे चोरी हो रही है, कहाँ पे लोग एसी चला के छोड़ दे रहे हैं। वो स्टेबिलिटी आते आते 1.5 2 साल लगता है। उसके बाद भी होटल मालिक को 1 2 महीने तो बुरे चले जाते हैं। पता लगा सीजन नहीं है, पता लगा कहीं कुछ हो गया, पता लगा कोरोना फैल गया कहीं। तो आपको इनकम जैसा तो किसी बिजनेस में होता नहीं है। ओवरऑल आप सीख जाओगे तो। और इंट्राडे करो या स्विंग कैच करो, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हो और एक बार जब लूज कर रहे हो तो कैपिटल कितना लूज कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। मैंने क्रिप्टो की ट्रेडिंग अभी तक नहीं करी है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं कि क्रिप्टो कोई खराब चीज है, इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मेरे पास 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2017-18 में दोस्तों ने बहुत मुझे फोर्स किया था, मैंने संभव नहीं किया। तो पूरी बस मेरे से मिस हो गई। अभी बस जो है बहुत तेज चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं उसको दौड़ के नहीं पकड़ सकता हूँ। दौड़ दौड़ के पकड़ूंगा तो टांग टूटने का बहुत खतरा रहेगा। तो अभी तो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। आप डेली देख रहे होगे लोगों के ट्वीट पे और फेड के न्यूज पे बार बार करेक्ट हो रहा है। जब अच्छा करेक्शन आएगा अपन उसको इन्वेस्टमेंट के लिए देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं पुल बैक में बिलीव करता हूं, मैं करेक्शन में बिलीव करता हूं। और ट्रेडिंग के लिए मेरे कई दोस्तों ने पिछले 6 महीने साल भर में शुरू किया है, अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैंने जो क्वाड के साथ एक इंटरव्यू किया था, अगर आपने नहीं देखा, QUAT क्वाड के साथ एक इंटरव्यू इसी चैनल पे है। वो क्रिप्टो में एल्गो के थ्रू ट्रेड करता है। तो उसको मैंने अपना भी पैसा दिया हुआ है ट्रेड करने के लिए। तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। ट्रेडिंग के लिए तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। एनी इंस्ट्रूमेंट जिसमें प्रिडिक्टेबल वॉलेटिलिटी हो, जिसमें ट्रेंड्स हो इंट्राडे में, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन सैटरडे संडे को भी ट्रेड होता है तो पोजिशनल ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है। तो ये है, मैंने अभी तक ट्रेडिंग नहीं करी है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करा है। और इन्वेस्टमेंट जब बहुत अच्छा करेक्शन होगा तभी करो। हाँ, क्रिप्टो का फ्यूचर आने वाले 5 साल में, 10 साल में काफी अच्छा होने वाला है। हो सकता है बियॉन्ड बिलीफ हो। जैसे याहू सर्च आई थी, खोज गूगल के इनिशियल ईयर्स थे सर्च इंजन में, वैसा ही कुछ है।
बिटकॉइन सर्वाइव करेगा कि नहीं, शिटकॉइन सर्वाइव करेगा कि नहीं, इथेरियम सर्वाइव करेगा कि नहीं, डॉग कॉइन सर्वाइव, ये बोलना मुश्किल है। हो सकता है कोई नया कॉइन आ जाए जिसमें एनर्जी बहुत कम लगती हो और सब लोग उसमें शिफ्ट हो जाएं। जनरली ऐसा होता है, फेसबुक आने से पहले भी ऑर्कुट था, हाई फाइव था, कि वो जो सोशल मीडिया के थ्रू या जो कलेक्टिव कॉन्शियस के थ्रू जो चीजें डेवलप होती हैं उसमें शिफ्ट भी बड़ा फास्ट होता है। जब भी कोई नई कूल चीज आ जाएगी तो आपको 15 दिन लगेगा, सब लोग उसी की बातें करेंगे और पुराना जो है सब लोग छोड़ देंगे। तो जैसे इन चीजों में इतनी तेजी आई है, समझो, फर्ज करो कि अगर एलन मस्क कल गए एक ऐसा कौन लॉन्च कर देता है, भाई उस बंदे में कैपेबिलिटी तो है, उसने चांद पे रॉकेट छोड़ने की बात करी है, नासा के साथ कोलैबोरेट करके सामान भेज रहा है, मतलब ये सब बड़े काम है ना, केवल हवा में नहीं कर रहा है हमारे आपकी तरह, वो केवल किसी को ट्विटर पे राय नहीं दे रहा है, करके दिखा रहा है। 3 कंपनियों का वो सीईओ है। अच्छी है बुरी, कोई भी एक फंक्शनिंग कार चला रहा है जो यूएस में बहुत बिक रही है, यूरोप में बहुत बिक रही है, चाइना में बहुत बिक रही है, लाइक टेस्ला की जो कार है। कैपेबिलिटी वाला बंदा, पेपाल बनाया उसने, बिलियनियर है। कल के उसने ऐसा कॉइन लॉन्च कर दिया जो अभी की एनर्जी से समझो कि 1000 गुना कम एनर्जी लगाए। इम्पॉसिबल तो टेक वर्ड में कुछ भी नहीं है ना। गूगल हमें 1 सेकंड में 10,000 रिजल्ट दिखा देता है, आज से 15 साल पहले ये इम्पॉसिबल था, राइट। या बहुत सी चीजें 15 साल पहले जो इम्पॉसिबल थी आज एकदम लगता है कि बच्चों का खेल है। आपके जो मोबाइल फोन है, 15 साल पहले नोकिया 3310 आता था, सोचा था किसी ने ऐसा फोन होगा जो साला पीसी से भी तेज चलेगा? तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है एक दिन ऐसा है कि एलन मस्क ने ऐसा कॉइन लॉन्च कर दिया जो भैया एकदम एनर्जी नेग्लिजिबल लेता है, जिसमें आप अगर रेगुलेटर्स भी चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को भी एड्रेस कर दे, जो अभी की सारी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस कर दे, तो आपके बिटकॉइन पे, इथेरियम पे और जो भी ये शिट कॉइन है उस पर कोई थूकेगा भी नहीं, सब लोग। तो क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा फ्यूचर है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी इनिशियल फेज है, इसमें से कौन कौन सा क्रिप्टो सर्वाइव करेगा वो कहना मुश्किल है। तो बिटकॉइन के फैन बॉय मत बनो, ट्रेडर बनो। नीचे जाएगा तो साले को दबा के सेल करेंगे, ऊपर जाएगा तो दबा के बाई करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग के लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा समझना बाकी है, करेक्शन आना बाकी है, जब आएगा तो देखेंगे। फेड ने बोल ही दिया है कि भैया हम इसके पीछे पड़ने वाले हैं। फेड की एक अच्छी बात है कि अपने एक्शन को लेके वो फॉरवर्ड गाइडेंस देता रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। तो जब इसमें वो लोग इसकी अभी उन्होंने चालू कर दिया, अभी धीरे धीरे, जैसे कि नैपस्टर आया था म्यूजिक स्ट्रीमिंग का, बहुत लोगों को पता होगा, आज से 20 साल पहले नैपस्टर करके आया था। जब ऐसा आता है तो वो लोग क्या करते हैं, जो जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको ही अरेस्ट कर लेते हैं। अभी टर्की का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज का जो प्रोमोटर था वो देश छोड़ के भाग गया, और शायद $2.7 बिलियन का सामान लेके भी भाग गया एक्सचेंज का, बिटकॉइन का जो एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज चला था टर्की में। तो बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट कर लेंगे, 2-4 एग्जाम्पल सेट कर लेंगे, बाकी जनता तो भागती है बहुत तेज। मतलब हम और आप तो भेड़ हैं, वी आर कॉल्ड शीप्स। हमको तो जैसे ही हंटर दिखेगा तो हम भागना चालू कर देंगे एक ही डायरेक्शन में। तो ये फेड को पता है, बड़े बड़े रेगुलेटर्स को पता होता है, वो जब 10-10 साल का जेल टर्म दिखाएंगे ना तो बड़े बड़े लोग फ्लैट हो जाते हैं। तो ये हुई बिटकॉइन की बातें। वेट एंड वॉच इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ट्रेडिंग अगर आप करते हो, खोल लो अकाउंट, जो 2-3 मैंने आपको डिस्कशंस में बताए हुए हैं, 2-3 जो ब्रोकर है उनके पास अकाउंट खोलना बहुत ईजी है, 5 मिनट लगता है, खोल लो, पैसा डालो, ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। मेरे हिसाब से इंट्राडे करो, पोजिशनल मत करो, क्योंकि सैटरडे संडे को भी खुला रहता है, बहुत बड़ी बड़ी मूव्स आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एसेट क्लास कोई भी हो दोस्तों, एक थंब रूल नहीं वॉयलेट करना है, नेवर लूज मोर देन 1% ऑन अ सिंगल ट्रेड। एक ट्रेड पे 1% से ज्यादा लूज नहीं करना है, ठीक है। केवलर का क्वेश्चन है, एज वी नो फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड इट्स पेयर्स आर डिपेंडेंट ऑन मार्केट आवर्स, which INR pair do you suggest during Indian market hours to have volatility? Please elaborate if any trend you notice. ट्रेंड मैंने कौन सा नोटिस किया वो तो मैं ट्विटर पे डालता रहता हूँ, और हर दिन बदलता है। मतलब फ्राइडे का ट्रेंड अलग रहा होगा, मंडे को आप देखोगे, क्योंकि मैं जो ट्रेंड नोटिस करता हूँ वो जनरली 4-5 दिन 10 दिन के ट्रेंड होते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेशन आने वाला है, तो उस इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा कि डॉलर रुपये भी 80-85-90 तक चला जाएगा बहुत सडनली, तो वो तो बहुत लॉन्ग टर्म हुआ। उसके एसएल भी बहुत गहरे गहरे होंगे, बहुत लंबे होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो हर दिन बदलता रहता है, मैं ट्विटर पे शेयर करता रहता हूँ। पेयर आपको कौन सा ट्रेड करना है, डॉलर रुपये ट्रेड करना है। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं, ये ऑप्टा एफएक्स है या इस टाइप का जो भी है ना, जो जो कॉपी ट्रेड, और इस वीडियो पे भी हो सकता है आपको ऐड दिखे, वैसे किसी के चक्कर में मत पड़ना। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, करेंसी ट्रेडिंग बेसिक्स व्हाट नॉट टू डू। तो जो इलीगल है उसके चक्कर में अभी मत पड़ना। एनएससी में साइट पे जाओगे, वहां पे डॉलर रुपये ट्रेड कर सकते हो।
ऐसे जीरोधा के टर्मिनल पे आप जाओगे, डॉलर रुपए का फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हो, यूरो आईएनआर का फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, वही ट्रेड करो, सेम टेक्निकल लगाने होते हैं, ब्रेकआउट करो या मीन रिवर्ट करो, कोई नया फंडा नहीं है। समर्थ ने पूछा, द वे इट इज शोन इन बिलियंस टीवी सीरीज डज इट हैपन रियल? हाँ, सभी कुछ रियल में होता है। आप गूगल करोगे तो देखोगे। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, इंटरेस्टिंग है, पता नहीं कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा। एक जैसे अपने सेबी होता है, वहां एसईसी होता है। एसईसी का जो फाइन है और पनिशमेंट है वो आप ऑनलाइन देख सकते हो। वहां बड़े बड़े हेज फंड पे बहुत बड़े बड़े हेज फंड पे फाइन लगता रहता है। अभी बिलियंस के एक शो में उसने सेटल किया था ना, कि उसने चेक फाड़ के फेंक दिया था, अगर बहुत लोगों ने देखा होगा तो। ये देखो, मैंने एसईसी फाइन्स 1.9 मिलियन का था, वो अभी मिल नहीं रहा है। तो ये देखोगे अलग अलग स्कैंडल में जो है बहुत बड़े बड़े ब्राइबरी चार्जेस में सीमेंस ने पे किया है, और बहुत लोग पे करते रहते हैं। अभी उसका नाम नहीं मिल रहा है, जो सबसे बड़ा ये देखो, वेल्स फार्गो टू प्ले पे 500 मिलियन। दोस्तों, बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ा फ्रॉड करना, बड़ा फाइन पे करना बहुत आसान चीज होती है। तो ये आप देखोगे तो नवंबर 2020 में एसईसी लेवीज रिकॉर्ड 4.7 बिलियन। तो उसमें काफी सीन्स जो है वो रियल लाइफ से उठाए गए हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने जो सीरीज देखी नहीं होगी वो बोर हो जाएंगे। मुझे बार बार ये भी देखना पड़ रहा है कि कितने लोग छोड़ के चले गए, तो अभी 70 लोग ही बचे हैं। कुछ लो रिस्क ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज इंट्राडे में, आयरन कॉन्डोर हाँ लो रिस्क है, वर्क होगा। आयरन कॉन्डोर के ऊपर टेस्टी ट्रेड का सौरभ जी वीडियो देखिए। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करिए, मैं एक वीडियो बना के समझाता हूँ आपको आयरन कॉन्डोर का। और अच्छी स्ट्रैटेजी है आयरन कॉन्डोर, सेफ अगर आपको खेलना है, बट आपको रिटर्न भी 1.5 से 2% का मिलेगा। अच्छा रिटर्न है, 1.5 से 2% महीने का, बहुत बुरा नहीं होता है। लेकिन बहुत लोगों को इसमें खुशी नहीं मिलती है, तो पहले से बता दे रहा हूँ। इंडेक्स म्यूचुअल फंड, गुरशरण जी, बेस्ट होता है, आप सही एकदम बोल रहे हो। इंडेक्स म्यूचुअल फंड ही में ही करना है। बाकी का म्यूचुअल फंड एक स्कैम होता है, उसके ऊपर भी अपने को वीडियो बनाना है। मुझे तो दिखता है कि इतने ढेर सारी चीजें लोग पूछते हैं और उस पर हर एक क्वेश्चन मेरिट्स अ न्यू वीडियो। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में चार्जेस बहुत कम होते हैं, सेबी ने चार्जेस की कैपिंग लगाई हुई है। कंपटीशन म्यूचुअल फंड्स के बीच में बहुत ज्यादा है, और यूएस में ज्यादातर लोग इंडेक्स म्यूचुअल फंड में वेनगार्ड का जो म्यूचुअल फंड है उसमें ही डालते हैं। जीरोधा जो है वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड लेके आने वाला है। तो नितिन कामत ने बोला हुआ है बहुत जल्दी ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड लाने वाला है, इंडिया का ओन वेनगार्ड। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये जीरोधा लाने वाला है, और नहीं तो किसी का भी आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड कंपेयर कर लिए। म्यूचुअल फंड में इनफैक्ट मैं वीडियो अगले एक हफ्ते के अंदर ही बनाने वाला हूँ। ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा सबसे अच्छा होता है या कैसे चूज करें, क्या क्या फैक्टर देखना है, कहाँ सर्च करना है, सर्च करने के बाद कहाँ कहाँ जाना है, क्या देखना है, इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और ब्लाइंडली आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में यकीन रखते हैं तो। याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालना है, एक साथ मत डालिए। अभी अगर 20% डाल दिया, मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है उसके बाद 20% डालिए, ऐसे 5 पार्ट में डिवाइड करके डालिए। वो आगे आपका इनिशियल कॉर्पस, और उसके बाद जो आपकी सेविंग्स होंगी, जो आपने बचत करिए, उसको बाद में मार्केट के करेक्शन के बाद उसको एवरेज करते जाइए। ठीक है, और टाइम होराइजन 5 से 7 साल का मिनिमम रखिए, तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। So doing okay in positional cash trading, but sir, doing okay in positional cash trading, but not in any good in intraday. Please share some specific intraday rules. स्पेसिफिक इंट्राडे रूल्स मैंने अपने वीडियोस में शेयर किए हुए हैं। एक तो आपको साथ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट भी शेयर किया हुआ है। बाकी के भी मैं इंट्राडे के स्टॉक्स, क्या मैंने कल कौन से स्टॉक वो किए थे शुभम जी, कल कौन से स्टॉक्स लिए थे, उसका क्या लॉजिक है, गलत गए हो या सही है, मैं जिन स्टॉक्स में लॉस भी हुआ वो उनको भी डिस्कस करता हूँ।
वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ नेक्स्ट डे। अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको एक प्रैक्टिकली एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि कौन से स्टॉक लेने हैं। ब्रॉडर आंसर आपके क्वेश्चन का दूं तो जिन स्टॉक्स में मूवमेंट दिख रहा हो, ऊपर के साइड या नीचे के साइड, बड़ा बड़ा, जिसमें ओपनिंग रोज जो है हवा में हो रही हो, गैप्स बन रहे हो डाउन या अप, वहां पे आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करिए, आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। बसाक जी ने पूछा है, विथ डेली जॉब हाउ डू यू डू इंट्राडे, आई एम नॉट एबल टू सी स्क्रीन होल टाइम। आपको ये स्क्रीन नहीं दिख रही, ज्यादा कुछ स्क्रीन पे करा भी नहीं है, अगर नहीं भी दिख रही तो माफी चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी में बड़ा वीक हूं मैं। मैं कैसे करता हूँ दोस्तों, मेरे बारे में ज्यादा सवाल मत पूछिए, जहां तक होता है मैं आपको सच सच बता देता हूँ। मेरे पास 2 डीलर और हैं जिनके थ्रू भी मैं डील्स वो कराता हूँ, मैंने उनको रूल समझा दिए हैं, फोन पे गाइड करता रहता हूँ। और 2-3 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स पे वो भी मेरे साथ डिसीजन लेते हैं। 3 लोगों की टीम है, और मैं अपना ऑफिस से काम भी करता हूँ, आपके साथ ट्विटर पे भी इंटरेक्ट करता हूँ। काफी बड़े बड़े एम्बिशन हैं बाद के लिए, सोचा है कि एक अपना अपनी फंड मैनेजमेंट कंपनी खोलेंगे, अपना एक एआईएफ खोलेंगे या कुछ ऐसा खोलेंगे, उसी सब की तैयारी में लगे हैं। उसी के लिए ये भी चाहिए कि थोड़ा सोशल मीडिया में भी 1 लाख फॉलोअर्स हों अगर, तो बाद में कुछ लॉन्च करेंगे तो लोगों को क्रेडिबिलिटी भी रहेगी, लोगों ने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा होगा, और लोग इजी रहेगा सब कुछ हासिल करना। उसी में आपकी मदद भी ढूंढता रहता हूँ कहीं ना कहीं, कि आप भाई वीडियोस को लाइक करो, या मेरा ट्विटर पे आपको कुछ अच्छा लगता है तो रिट्वीट करो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कि मैं कैसे करता हूँ, उसका यही सिंपल सा आंसर कि 2 लोग मुझे हेल्प करते हैं। सो 1-2 क्वेश्चन हम लोग और ले लेंगे। मैंने 1 घंटे का सोचा था दोस्त, अगर आज इसमें अच्छा हमको वो मिलेगा तो हम लोग इसको एक वीकली अफेयर रख सकते हैं। हर बार कुछ नए क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा। हर्षित पांडे का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंट्राडे में बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, मेरे पास 2-3 स्ट्रेटजीज हैं। मैं क्यों नहीं शेयर करता हूं टेलीग्राम पे, या क्यों नहीं शेयर करता हूं आपसे, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है दोस्तों, कि जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी होती है उसमें सक्सेस रेट 30-40% होता है। इनफैक्ट मैंने जब आप लोग मेरे फॉलोअर नहीं थे, मेरे फॉलोअर 2000 से भी कम रहे होंगे, तो मैं अपनी स्ट्रेटजीज लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी की बाइंग वाली शेयर करता था, और उस पे उस जमाने में भी हैवी ट्रोलिंग होती थी, क्योंकि 30% सक्सेस रेट का मतलब है कि 10 से 15 ट्रेड भी लगातार गलत जा सकती है। ये प्रोबेबिलिटी आप अगर समझ पा रहे होगे, 50% अगर आपकी सक्सेस रेट है तो 8 से 10 ट्रेड लगातार गलत जा सकती है। यू कैन हैव 10 लॉसेस इन अ रो। अगर 30-40% है, यू कैन हैव 15-20 लॉसेस इन अ रो। तो जब भी लॉस होता था तो लोग बड़े मतलब ये भी होता था कि लोग जो है वो उल्टा सीधा कमेंट डाल देते थे या जो भी, तो मुझे स्ट्रेस होता था। तो मैं अभी भी आप बोलोगे तो मैं शेयर करना चालू कर दूंगा। मैंने इनफैक्ट सबसे इजी होता है शेयर करना, क्योंकि रिटेल में जिनके पास थोड़ा कैपिटल है, बाइंग साइड में आपको बहुत कम पैसा कमिट करना पड़ता है, और बाइंग साइड में रिटर्न आपके साल के अंत में अच्छे मिलते हैं। लेकिन आपको खुद से अपनी पर्सनालिटी में ढूंढना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा खुद से, क्या आप 10 से 15 लॉस लगातार लेने के लिए रेडी हो एक लॉट पे भी। बहुत लोगों का आंसर तो नहीं होता है, तो मैंने इसलिए बंद कर दिया था। वरना बहुत 2-3 अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैं उस पर पूरा वीडियो ही बना के डाल दूंगा कभी, तो आप देखना। इन्वेस्टिंग इन निफ्टी बीज और इंडेक्स थ्रू, दोनों ही बढ़िया है। तो श्याम जी दोनों ही बढ़िया है, दोनों में से कोई करिए। फेथ रखिएगा, जब निफ्टी गिरेगा तो ये नहीं कि कैश करके बाहर निकल गया। मैंने अभी ट्वीट किया था कि ज्यादातर लोग जो है पिछले 10 साल में उन्होंने 10% रिटर्न भी नहीं कंपाउंड बनाया है। उसका रीजन ये है कि जब उनको मार्केट गिरता है तो फियर आ जाता है, वो और नहीं खरीद पाते, उल्टा बेच ही देते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाने लगता है, सच सच बताना दोस्तों, जब 11,000 गया था पहली बार, 7,000 से रैली हुई थी 11,000 निफ्टी में, कितने लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बेच दिया होगा, अरे बहुत चला गया, बहुत चला गया, तो बहुत गेन हो गया, मुझे 20% का गेन हो गया। और फिर मार्केट 15,000 तक गया, आप देखते रह गए। तो ये बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। बाकी इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने निफ्टी 20 में लगाया है कि, दोनों में बहुत मामूली फर्क है। ठीक है, अभी दोस्तों इसको 1-2 बार देख लेते हैं, ट्विटर में डीएम में कुछ क्वेश्चन आए हैं क्या। और हाउ टू डिसाइड SL 1% इन FNO ट्रेडिंग, आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस। नॉट कमिंग ऑन यूट्यूब।
सर एनी डाउनफॉल ऑफ कैलेंडर डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड पोजिशनल मंडे ट्यूसडे टू थर्सडे। सी कैलेंडर और डायगोनल कैलेंडर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज होती है, दिखने में आसान लगती है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं आपसे कृपा करके बोलूंगा आप इसमें टेस्टी ट्रेड के वीडियोस देखिए, समझिए, बिना ट्रेड के सिमुलेटर में इसको रन करके देखिए। ऑब्स्ट्रा का भी एक सिमुलेटर होता है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं बट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसको करिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये मत करिए, पहले दिखेगा आपको कि इजी है इसमें, लेकिन इतना इजी नहीं है इसमें, क्योंकि वेगा वगैरह भी पिक्चर में आ जाता है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ डेरिवेटिव है वो भी पिक्चर में आ जाता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी इसको अवॉइड करिए मेरे हिसाब से, इस पे और ज्यादा सीखिए। इंग्लिश में बहुत वीडियो है, हिंदी में ज्यादा नहीं है। आपको अगर हिंदी केवल समझ में आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की शुरू में, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ सिंपल टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, लेकिन टाइम मिलेगा तो जरूर बनाएंगे। सर न्यू मार्जिन रूल पे एक वीडियो बना रहे हैं यार। न्यू मार्जिन रूल पे भी एक ही चीज है, न्यू मार्जिन रूल आने के बाद स्लिपेजेस बहुत बढ़ गए हैं और सितंबर के बाद आपको कोई लेवरेज नहीं मिलेगा 1 सितंबर से। तो जितना मार्जिन आपका ब्लॉक होता है पोजिशनल में, ओवरनाइट ट्रेड्स में, उतना ही ब्लॉक होगा। इससे काफी स्ट्रेटजीज जो है इंट्राडे की जो लेवरेज पे चल रही थी वो चलना कम हो जाएंगी। कैलेंडर वर्सेस आयरन फ्लाई, कैलेंडर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है, आयरन फ्लाई तो बहुत सिंपल है। आयरन फ्लाई या आयरन कॉन्डोर काफी सिंपल है, उसमें सब रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ डिफाइंड होता है, उससे शुरू करिए। कैलेंडर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो अलग से किसी दिन समझाऊंगा। हाय आनंद, प्लीज शेयर अ कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी एट क्रूशियल जंक्शन सपोर्ट। दोस्त, कैसी भी स्ट्रेटजी हो, चाहे ऑप्शन सेलिंग हो या बाइंग हो, द मोमेंट आपने स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दिया वो आपके लिए कंजर्वेटिव हो जाती है। आपका स्टॉप लॉस आएगा, हिट हो जाएगा, 1% कैपिटल चला जाएगा, तो वो तो अपन मान के ही चलते हैं ना। हाउ टू कोप विथ लॉस व्हेन यू आर प्रॉफिटेबल फॉर 1 ईयर एंड इन मे 15 लॉस। देखिए फिर से एग्जांपल देता हूं, एक सेकेंड। जैसे आप कार चलाना सीखते हैं दोस्तों, कार चलाना सीखते हैं तो कैसा होता है कि शुरू में कोई भी नई चीज आ जाती है, एक सामने कुत्ता आ जाए, सामने से गाड़ी आ रही है, कुछ भी है, तो आप समझ नहीं पाते हो करूं क्या, या तो जो सिखा रहा है उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, नहीं तो छोटी मोटी टक्कर मार देते हो आप, राइट। तो शुरू में जो आपको लॉसेज होंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं। लेकिन जब आपको 8 साल कार चलाते हो जाता है, आपके बगल में गर्लफ्रेंड बैठी होती है, आप उससे बात कर रहे होते हो, बात बात में उसे निहार भी रहे होते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे होते हैं, रोड पे तो कम ही देख रहे होते हैं, लेकिन 99.99% आपकी गाड़ी चल रही होती है। आप अगर मतलब बिल्कुल बड़े ऐसे मुश्किल बाजार में भी गुजर रहे हो तो ऐसा लगता है कि जितना भी ट्रैफिक है, जितने भी वो तांगे वाले जा रहे हैं, रिक्शे वाले जा रहे हैं, आसपास जो कुछ भी है वो सब बस आपके दिमाग में घूम रहा है कहीं ना कहीं। आपकी आंखें उसको बस एक नजर से देख रही हैं और आपका जो फोकस है वो आपकी गर्लफ्रेंड पे है, लेकिन एक खरोच भी नहीं आती है। इसको बोलते हैं साइकोमोटर प्रैक्टिस। दिमाग का और आपके ये आपकी मसल्स का और आईज का ऐसा तगड़ा कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है प्रैक्टिस के साथ कि आपको सामने वाले तांगे पे आने वाले जो सामने कुत्ता आ रहा है उस पर फोकस नहीं करना पड़ता है। कितनी ब्रेक मारनी है, मतलब एकदम से ब्रेक मार के भी नहीं, तो गर्लफ्रेंड ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई उसकी नाक टूट जाएगी। एकदम हल्की सी ब्रेक आप लगाते हो और वो कुत्ता भी निकल जाता है, आपकी गाड़ी फिर स्पीड पकड़ लेती है और आपने जैसे सोचा भी नहीं होता, अपने आप हो रहा होता है। इट्स लाइक आपके दिमाग एक अलग ऑटो पायलट चला रहा है और मेन काम तो गर्लफ्रेंड को निहारना है। तो ये आता कैसे है? प्रैक्टिस से आता है। इसीलिए जो लोग हवाई जहाज चला रहे होते हैं, जो एयरक्राफ्ट चला रहे होते हैं, वो लोग उनका हर तरीके के एयरक्राफ्ट पे एक फ्लाइंग आवर्स की लॉग होती है जो उनको डीजीसीए को भेजना होता है। मतलब कौन से टाइप का एयरक्राफ्ट चला रहे हो वो भी आपका उसके देख, जैसे जितने ज्यादा घंटे चलाओगे उतना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बेटर हो जाओगे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि अचानक से लॉस हो, एक सीरीज ऑफ लॉसेस शुरू हो जाती है, कैसे करना है उसका आंसर बस यही है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस, लॉसेस एक रो में 10 15 20 भी हो सकते हैं। प्रैक्टिस विथ वेरी स्मॉल अमाउंट, जब तक कि पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए तब तक प्रैक्टिस विथ वेरी स्मॉल अमाउंट। नहीं भैया, मैं तो 15 साल हो गए मेरे को, मैं पूरा स्क्रीन देखता रहता हूँ। शाम को किसी दिन अपनी आंखों की फोटो आपको भेजूंगा सुरेश जी। आंखें लाल हो जाती हैं, बच्चे भी कहते हैं पापा आज आपकी आंख बहुत लाल हो रही है। स्क्रीन नहीं देखना, केवल फैंटेसीज में होता है, स्क्रीन देखना पड़ेगा।
नहीं तो ऐसा कुछ करो ना, पोजिशनल करो ना, कि जिसमें आपको 3-4 दिन में ट्रेड आया, 3-4 दिन में स्टॉप लॉस हिट हो, तो नहीं देखनी पड़ेगी। इंट्राडे कर रहे हो तो स्क्रीन देखना पड़ेगा। भैया मैंने DC 10 और 20 अभी समझा दिया, अभी दोबारा समझाऊंगा तो उन 60 लोग जो शुरू से मेरी ये सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर कभी समझाएंगे आपको DC 20 और 10। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उन लोगों का खास शुक्रिया, वो 58 लोग जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। मेरे अभी सबको नाम लेके तो नहीं बता सकते, लेकिन सच में मतलब मनोज जी आपको फिर से म्यूट कर रहा हूं, आप अभी तक बने हुए हैं। अनम्यूट कर रहा हूं, आप बताइए कैसा लगा आपको सेशन। तो बहुत बहुत थैंक यू उन लोगों को। दोस्तों मैं आपके साथ जो भी शेयर कर रहा हूं उसमें जैसे मैंने बताया सच्चाई के साथ शेयर कर रहा हूं, फ्री में कुछ भी शेयर नहीं कर रहा हूं। मेरा जैसा आपको फ्यूचर गोल भी धीरे धीरे बता रहा हूं मेरा, कि एक अपनी कंपनी खोलनी है जिसको जिसको एक लेवल पे ग्रो कराना है, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सपोर्ट करो दोस्तों। और वो सपोर्ट पैसे से नहीं करना है, सपोर्ट आपको अपने सोशल मीडिया के हैंडल से करना है। आप यूट्यूब पे हो तो लाइक किए बिना मत जाओ। आप अगर मतलब मेरे एक जो बोलते हैं ना, एक स्टीव जॉब्स ने एक स्टेटमेंट दिया था दोस्तों, उन लोगों को बता रहा हूं जो 57 लोग जो रुके हुए हैं। स्टीव जॉब्स ने बोला था बहुत शुरू में, जब वो एप्पल में सेकंड टाइम आया था, फर्स्ट टाइम जब उसको निकाला गया, उसके बाद स्टीव जॉब्स वापस आया, उससे पहले कंपनी करीब 260 प्रोडक्ट्स बना रही थी, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज के लिए प्रोडक्ट बना रही थी, अलग अलग तरीके के कंप्यूटर बना रही थी, बहुत कुछ बना रही थी। उसने सब कुछ स्क्रैप करके सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स पे फोकस किया। स्टीव जॉब्स की जो मेन ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी है, वो पढ़ना जरूर, बड़ी मोटी है लेकिन बहुत पढ़ना समझ में आएगा। तो उसने आते ही सब कुछ स्क्रैप कर दिया, सिर्फ 6 प्रोडक्ट रखे। उसने बोला कि मुझे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला जो मैं भी बिलीव करता हूं, अगर कभी मेरे पास ऐसा हो गया तो समझ लेना कि फिर दुनिया जीत लेंगे। और इसको बहुत फेमस लोगों ने अलग अलग वर्डिंग्स में बोला है, अगर आपके 2 मिनट तो मैं बताता हूं जाने से पहले। ये बोला कि आपके 1 मिलियन या 2 मिलियन कस्टमर्स हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि आपके 1000 लॉयल कस्टमर्स हो। ये स्टीव जॉब्स से दोबारा आया था, आज से तकरीबन हो गए इस बात को भी 15-20 साल। तो उसने बोला था कि उसको 2 मिलियन कस्टमर नहीं चाहिए, 1000 कस्टमर ऐसे चाहिए जो उसके कहने पे कुछ भी करें। आज स्टीव जॉब्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, उसको गए हुए काफी साल हो गए, लेकिन अभी भी आप देखोगे जो एप्पल यूज करता है ना, समझा के हार जाओ। हालांकि मैं तो अब एंड्रॉयड यूज करता हूँ, मेरी वाइफ एप्पल यूज करती है, तो उसको समझा के हार जाओगे, वो एप्पल की बेइज्जती नहीं सहेगा। वो एप्पल छोड़ के एंड्रॉयड नहीं है, जबकि एंड्रॉयड आधे दाम पे बिकता है, सेम स्पेसिफिकेशन। वो लॉयल्टी जो उसने स्टैब्लिश करी, तो उसने बोला 1000 लॉयल कस्टमर जो है वो 2 मिलियन कैजुअल कस्टमर से ज्यादा अच्छा। तो मैं भी यही मानता हूं, सोशल मीडिया में अगर मेरे 100 ऐसे फॉलोअर्स हों जिनको मैं बेनिफिट दे पाऊं, कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं उनकी जिंदगी में, और वो मेरे प्रति थोड़ी लॉयल्टी दिखाएं, तो मेरा ये जो मैं मेहनत डाल रहा हूं सोशल मीडिया में वो सफल हो जाएगी। तो आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से मुझे सपोर्ट करो और मुझे इनकरेज करो। थैंक यू दोस्तों, आज की मीटिंग के लिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।